I welcome all of you once again on behalf of our study circle and all. Today we have a wonderful webinar on controversies in GST or live controversies. And on these topics, our authored and learned speaker, CA Advocate J.K. Mittal is with us. His brief profile is like this. He is a chartered accountant turned advocate, law graduate from Delhi University, now practicing in indirect tax, particularly indirect tax in High Court and Supreme Court. He is a co-chairman of National Council on Indirect Tax (ASSOCHAM). The Supreme Court Bar Association honored him for consecutive 9 years from 2006 to 2014 and again 2016 to 2018 on the occasion of the Law Day. He also authored several books. Some of them is Law, Practice and Procedure of Service Tax, Introduction to GST, Handbook of GST Law, and others. This is the brief profile of sir. And thank you, sir. Once again, we welcome you, sir. And over to you, sir. Good evening, friends. First of all, I want to thank Mr. Rajesh Agarwal, my friends for last several years, for giving me this opportunity. And in this time of crisis, we all are meeting. I wish for good health for all of you to stay at home, stay safe, follow government directions. In next almost 2 hours, we are going to discuss some of the real GST issues or the present controversy under the GST. I will give my thoughts. Some of those topics you might have heard at different platforms also. I will give my best to make you understand the legal nuances about this, how to fight on these cases and what grounds. If you have any questions subject to the Mr. Agarwal and his team, you can raise the question at the end. And if any issue arises in between, Mr. Agarwal can interrupt me so that we can accordingly, like if you are not able to hear, if my voice is not reaching to you, if you are not able to see the screen, then you can interrupt me. Let's start with the very first topics, which is to my mind is wonderful topic. What I have seen since the GST was introduced on 1st July 2017 till now, thousands of people have been arrested in alleged violation of the GST law in one way or the other way. We are not going to discuss all these things. What we are going to discuss is some of the major issue which has been put to me by certain professionals and some of my clients, which I want to discuss. The first allegation department generally levied against the person whom they arrested is, you have the fake bill. Now the question arises, ये fake bill क्या होता है? क्या रियल में वो फेक बिल है जिसको वो फेक बता रहे हैं या वो बिल जेन्युइन है? जो मेरे पास केसेस आए हैं या जो मेरे को फीडबैक मिला है, जो भी लोग जिनको अरेस्ट किया गया वो कहते हैं कि हमने XYZ या इससे ये बिल हमारे पास आया है और हमने उसकी पेमेंट की है, उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, हमारी बुक्स में भी इसकी अकाउंटिंग है और उस पे GST नंबर लिखा हुआ है, वो GST में रजिस्टर्ड है, वो उसको फेक बिल बताते हैं. In my opinion, that can never be treated as a fake bill. वो फेक बिल नहीं होता है. जिस पार्टी ने इशू किया उसी का नाम है, उसी का एड्रेस है, उसी के सिग्नेचर है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री है. फिर भी अगर वो फेक बिल कहेंगे तो वो फेक बिल नहीं है. Therefore, if the department make an allegation against you, which you feel like that it is a not genuine one, the relief will definitely come to you. You should be very, very confident when you are dealing with such type of cases. Fake bill, in my opinion, only could be like my firm name is J.K. Mittal and Company. If you generate a bill in the name of J.K. Mittal and Company, you put my signature, then it is regarded as a fake bill. मैं अगर आपको बिल देता हूं, मेरी फर्म का बिल देता हूं, तो फिर वो फेक बिल नहीं होता है. Now the question arises, sometime they make the another allegation कि जो बिल है वो उस एड्रेस पे वो फर्म एग्जिस्ट नहीं करती है.
Now the question arises, if the firm is not existing at the address given in that bill, can it be regarded as a fake bill? My again answer will be no. Because first thing is that I am not supposed to verify whether the firm at the address given exists or not. आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखें, बहुत सारी चीजें. नाउ इवन कोविड लॉकडाउन, इवन माय फैमिली इज आल्सो परचेजिंग सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन. कई बार ग्रोसरी की चीजें हम मंगाते हैं बिग बास्केट से. इफ यू आस्क मी वेयर इज द बिग बास्केट, आई डू नॉट नो. वेदर इज रजिस्टर्ड एट दैट एड्रेस और नॉट, आई डू नॉट नो. एक पर्ची लगी आती है और आपको पता है कोविड में वो पर्ची भी कोई नहीं उठाता. So therefore, I am not supposed to verify all these things. You should be very, very careful about such allegation. Now, the second allegation they are levying that you reverse your input tax credit, whatever you have taken. Otherwise, हम आपको arrest कर लेंगे. अब वो किस input tax की credit की बात कर रहा है जो reverse करने की? He is asking you to reverse the input tax credit for the bill which you have in your hand. Merely on the ground कि वो exist नहीं कर रहा है वहाँ पे, या और कोई ग्राउंड्स हो सकती है. टू माय माइंड देयर इज नो नीड टू रिवर्स दैट क्रेडिट ओनली ऑन सच एलिगेशंस. व्हाई? बिकॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज बेस्ड अपॉन वैल्यू एडेड टैक्स. इफ दे विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम ईच वन फॉर द एंटायर अमाउंट, जितना बिल वैल्यू है उस पे पूरा अमाउंट पे वो आपसे टैक्स ले लेंगे और आपको क्रेडिट नहीं देंगे, तो दैट मीन्स वी आर कंप्रोमाइजिंग विद द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएसटी. That is not a valid ground at all to my mind. Now another issue arises कि जब हम मल्टीपल लोगों की बात करते हैं, जो केसेस आते हैं आपने भी सुना होगा, they said there is a circular trading, there is a chain कि एक A पार्टी है वो दिल्ली में है, B है वो बॉम्बे में है, C है वो चेन्नई में है और D जो है वो लेट्स से उड़ीसा में है. वो कहते हैं नहीं, चारों से पूरे अमाउंट का जीएसटी लेंगे एंड ऑल फोर से वो क्रेडिट भी डिनाई कर रहे हैं. और सबसे बड़ा एलिगेशन क्या लगाते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर. दे सेड दिस इज ओनली ए बिल विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप सेक्शन 9 देखेंगे जीएसटी लॉ का, जीएसटी का टैक्स कब लगता है? जब व्हेन देयर इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अगर उनका एलिगेशन ये है कि कोई सप्लाई नहीं है, ना गुड्स की है ना सर्विसेज की है, अगर ये एलिगेशन है तो फिर वो टैक्स किस बात का मांग रहे हैं हमसे? मैं आपको बता रहा हूं, जनरली हम एज ए कंसल्टेंट हम इस बात को देखते ही नहीं है. देखिए दो चीज हो सकती है. कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलत ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं बता रहा हूं, आज मेरे पास कोई भी चाहे वो किसी भी लेवल का क्राइम करने वाला आता है, चाहे उस पर झूठा एलिगेशन है, सही है, मेरी ड्यूटी एज ए डॉक्टर उसको बचाने की है. जब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, वो ये नहीं पूछता कि भैया कौन सी कास्ट से हो, कौन से धर्म से हो, या आतंकवादी हो या नहीं हो. उसकी ड्यूटी तो उसको बचाना है. हम किसी को क्राइम करने के लिए नहीं इंस्टिगेट कर सकते, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन आ गया, वो चाहे जेन्युइन है चाहे कैसा भी, हम उसको बचा सकते हैं. उसमें हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है और हमें खुशी होनी चाहिए. तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एलिगेशन ये है कि देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स and without there is a supply of goods, this is a bill. Now you can raise a counter question in your mind. If there is no supply of goods, if somebody is alleged whether he is entitled to collect a tax from me, my answer will be no, because section 9 itself says the GST is applicable only on the supply of goods or services. Therefore वो कैसे टैक्स हमसे कलेक्ट करेगा? इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैं मानता हूं कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये वो चीजें नहीं है जो आप रोजमर्रा देखते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे मैंने बताने की कोशिश की है, जिसको मैं एज ए प्रोफेशनल्स इन विद माय क्लाइंट आई डे टू डे डील विद इट. एंड मैं इतने सारे मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, बता देना चाहता हूं. आज हम खुशी से उस बातें दिल से डिस्कस करेंगे. आप जितने मर्जी मेरे से क्वेश्चन पूछना, चाहे टाइम ओवरशूट कर जाए, सब्जेक्ट टू मिस्टर राजेश अग्रवाल, और सब फ्री रहेगा सब कुछ. लेकिन अगर यही चीजें, यही बातें आप मेरे से पूछने ऑफिस में आएंगे या मेरे से मीटिंग मांगेंगे अलग से, तो मैं डेफिनेटली हैप्पी अमाउंट चार्ज करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं. तो हमें इस वेबिनार का बहुत फायदा उठाना है. ये नहीं समझना कि दोबारा भी पूछ लेंगे, दोबारा पूछेंगे तो फिर पैसे लगते हैं. अब दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वी हैव ए मल्टीपल, जैसे मैंने बताया ABCD 4 अलग अलग स्टेट में लोग हैं जिनके अगेंस्ट एलिगेशन लगा है.
एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया जिसको मैं कई बार फाइट करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, जीएसटी आने से पहले भी। कैन देयर बी मल्टीपल सोकोज नोटिस टू द मल्टीपल पर्सन? सेक्शन 73 के अंदर जो सोकोज नोटिस दिया जा रहा है वो किसको दे सकते हैं? क्या, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ए सप्लाई ए गुड्स फॉर 100 रुपीज टू द बी, जीएसटी 18 रुपए लगेगा, वो एक अलग चीज है, उसको छोड़ देते हैं। एंड द बी सप्लाई फॉर 120 टू सी, सी फॉर 140 एंड डी फॉर 160। अब अगर उनका एलिगेशन देखें तो कहते हैं माल सप्लाई नहीं हुआ, उनका एलिगेशन देखें किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट लिया है तो रिवर्स कर दो, और फिर उनका अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं, दिल्ली वाले को कहते हैं आप 100 रुपए पे टैक्स जमा कराओ, बॉम्बे वाले को कहते हैं 120 रुपए पे कराओ, कलकत्ता वाले को कहते हैं 140 पे कराओ, उड़ीसा वाले को कहते हैं 160 रुपए पे कराओ। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा 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 एलिगेशन, पूरी की पूरी थ्योरी जो है जीएसटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। अगर माल सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं ले सकते, और माल सप्लाई है तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, और आप दोनों ही एलिगेशन लगा के और पूरे पूरे अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। जितने केस मैंने डील किए हैं, जितने लोगों ने मेरे को इंफॉर्मेशन दी है, वो 95% केसेस में ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपकी जीत पक्की है। बस आपको एक समय, इंडिया के अंदर देखिए, एक बार फेक एलिगेशन लग जाता है किसी के ऊपर तो उसका दाग हटाने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि कल ही केस खत्म हो जाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस की बात है। जैसे मैं बीमार हुआ, अभी एक मेरे दोस्त ने पूछा कि आपका पीठ का दर्द कैसा है, जब हुआ तो मेरे को ये लग रहा था मैं शायद ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने भी मेरे को हफ्ता हफ्ता करके निकाल दिया और मैं बिल्कुल चंगा हो गया, एकदम परफेक्ट, कभी मेडिसिन नहीं लेता, 1% किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। तो ये एक तरीका होता है डील करने का। तो नो मेंबर शुड फील लाइक दैट कि जो आज डिस्कस करते हैं। वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम सो सॉरी। Is it okay now? Yes, sir, yes. Very nice. सर हमारे आरडी काकरा जी कलकत्ता से और दीप जैन जी ने भी ज्वाइन कर लिया है सर, फरीदाबाद। और सेल टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेल टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है संजय शर्मा जी। वेरी गुड संजय शर्मा जी, हम आपसे मिलते रहते हैं, आप इस सेमिनार में जुड़े हैं तो आज आपसे कुछ गुफ्तगू करने का अलग से मौका मिल रहा है। अब द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन 73 एंड 74 में नोटिस देना होता है, किसको दे सकते हैं? अगर आप 73 या 74 सेक्शन देखेंगे, मैं जस्ट 1 मिनट के लिए आपके सामने स्लाइड में दिखा रहा हूं। द सो कॉल्ड नोटिस ओनली कैन बी गिवन टू ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अगर उनको श्योर नहीं है कि किनको उनको शोकोज नोटिस देना है, में नहीं है बाई चांस इस प्रेजेंटेशन में, तो शोकोज नोटिस देने के लिए सिर्फ एक निर्धारित पर्सन है, तो मल्टीपल आदमी को नहीं दे सकते। उनको ये नहीं है कि वो कहते ए बी सी डी चारों दें, उनको किस टैक्स कितना किससे कलेक्ट करना ये क्लियर होना चाहिए। मैं आपके सामने 2-3 जजमेंट रख रहा हूं और वो जजमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। 2 जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, गोविंद शरण और माथुराम अग्रवाला। इन दोनों के अंदर उन्होंने बताया कि जो टैक्सेशन लॉ है, in which there are 4 important components are there, and one of that component is the person who is liable to pay tax should be very clear in the law. किस आदमी को टैक्स देना है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अगर जिस आदमी को टैक्स देना है उसके अलावा आप किसी और से टैक्स मांगते हैं तो वो भी सो कॉज नोटिस लॉ में सस्टेन नहीं करेगा आपको। ऐसे में अगर कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर गलती करता है तो उसके साथ उस टाइम पे बहस नहीं करनी है। आप ये समझो गलती करेगा तो अल्टीमेटली आप जीत जाएंगे, क्योंकि उसी टाइम अगर आप उसकी गलती दूर करा देंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से फंसा सकता है। तो आपको उसको ये सब बातें अभी नहीं बतानी है, ये आपके एज ए प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस की बात है कि हम उस केस को सक्सीड कैसे करेंगे। Therefore, the person who is liable to pay tax always clear in the law. If it is not clear, the law will not sustain. Law will not be a valid law. Similarly, if the law is very clear who is liable to pay tax, then the so-called notice, if it is not clear, then so-called notice cannot sustain in the law. Therefore, in such a cases where the multiple so-called notice have been issued for the same very transaction,
asking all of them to pay the tax on the full amount of the invoice without input tax credit, you are likely to succeed in all such cases. एक और जजमेंट मैंने इसमें कोट किया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है फ्री जेब इंडिया लिमिटेड का, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसे फेक बिल की है जो सर्कुलर ट्रेडिंग में ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ फर्में बंद हो जाती है, कुछ लोगों ने हो सकता है जेन्युइनली काम ना भी किया हो. तो ऐसे केसेस में सपोज ए वाज ए पर्सन हु ओपन ए प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड बाय द टाइम ही वाज कॉट he converted into a private limited company. अब उसने ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बना ली है, सोकोज नोटिस अगर ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आता है, सोकोज नोटिस अगर ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आता है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा कि क्या ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लायबल टू पे GST फॉर द पीरियड प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कंपनी. मैं फिर डिफाइन करता हूं इसको. 1 जुलाई 2017 को हमारे ऊपर जीएसटी लगा. अगर जीएसटी हमारे ऊपर एक शोकॉज नोटिस आया 1 जनवरी 2020 को, और वो 2021 जनवरी से पहले वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, अब उसने 1 जनवरी 2020 को वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और उसमें वो खुद भी डायरेक्टर बन गया दूसरे लोगों के साथ. तो क्या 1 जनवरी 2020 से पहले का टैक्स डिमांड अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे शोकॉज नोटिस इश्यू करता है, ये कह के कि वही आदमी तो पहले प्रोप्राइटर था, वही पार्टनरशिप बन गया, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा शोकॉज नोटिस भी सस्टेन नहीं करेगा लॉ में. तो ये जजमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा. ये ऐसी चीज है कि ये हमारे दिमाग में कई बार आती नहीं है. मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इतने सारे केस हैंडल किए लाइफ में, ज्यादातर, क्योंकि देखिए लॉ चेंज नहीं होता है, चाहे वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील पढ़ता है, कानून वही है होता है, सेक्शन वही होता है. हम उस फैक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और कानून के साथ उसका मिलाप करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें उसमें इतनी खामियां मिलती है, चाहे उस बंदे की गलती भी रही हो तो भी हम उसको बचा लेते हैं. तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस की बात आती है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी शुड बी क्लियर अबाउट थिंग्स, कि हम जो बात कर रहे हैं कि उसके अंदर बिल्कुल सही चीज है. अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं. आपके ये टॉपिक मेरा जो फेक बिल इनवाइस का था, क्रेडिट का या मल्टीपल इनवाइस का, ये यहीं खत्म होता है. आपकी अगर क्वेरी है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे. नाउ द रूल 36(4), एक सब रूल 4 रूल 36 के अंदर इंट्रोड्यूस किया 2019 में, और उसके अंदर 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट भी की. हम 2019 में जो रूल बना उसके लिए कंसर्न है कि उसमें उन्होंने इनपुट टैक्स लेने पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पे, स्लाइड दिखा रहा हूं, Sir, no audio, please. for a second. Now, वेट सर, सर दोबारा आए हैं, मुझे लगता है अनम्यूट कर रहा हूं सर को. लॉग आउट हो गए थे सर. नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया, मुझे लगता है अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो.
आ गए मित्तल साहब, आ गए। यस, सॉरी, आपकी तरफ से म्यूट था तो आई वाज नॉट हाँ, एबल टू वेलकम बैक ओपन। सर, वेलकम बैक। Yes, I'm so sorry for interruptions. And let me share my screen again. I believe that uh, I was talking about the Rule 36.4, which was amended, and Sub Rule 4 was started in 2019. Some amendment was also made in December 2019. What we are going to discuss about these rules, I have drafted the few questions which is before you on your site. Sub Rule 4, whether override the condition mentioned under Section 16.2. My answer is yes. We are going to discuss in details how it is override the section. And second thing is that what we are going to discuss, the return which is mentioned under the rule is different than what is mentioned under section. So therefore, whether the rule which was drafted by the legislator or the delegated legislature, which does not comply with the condition mentioned under section 16 of the GST law, can said rule be a valid rule? If this rule is not valid, then whether can it be challenged in the court, and what remedy you can have in such a cases, then you can see it. Thirdly, this rule has already been challenged before Delhi High Court and Gujarat High Court. In point number 4 I have mentioned. Point number 5 I will discuss later on when I will discuss in detail about Rule 36. Let's now move on to the Rule 36. What exactly the Rule 36 Sub Rule 4 is saying? That has put a condition that input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoice or debit notes, the detail of which have not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 shall not exceed. Now it has been reduced to 10%. Earlier it was 20% of the eligible credit. Now the question arises that the condition is if the condition is put under the rule which is not there, again probably you are आपने अनम्यूट किया क्या? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है सर. Okay, thank you so much. Therefore, you read the rule carefully. At the end it says the subsection 1 of section 37. अगर आपने जो रिटर्न सप्लायर ने जो फाइल लोड की है उसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा रहा है और जो उसने अपलोड नहीं किया, अगर उसमें फर्क आ रहा है तो वो कह रहे हैं हम 10% तक का ही आपको क्रेडिट और अलाउ करेंगे. अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में क्या ये कंडीशन वैलिड है क्या नहीं है. मेरे हिसाब से बिल्कुल वैलिड नहीं है. क्यों? हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. उसके अंदर बड़े क्लियर कट कंडीशन लिखिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए क्रेडिट लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए. देयर आर 4 कंडीशन. फर्स्ट, आपके पास एक इनवॉइस होना चाहिए. सेकंड, आपको माल या सर्विसेज मिली होनी चाहिए, रिसीव होनी चाहिए. थर्ड कंडीशन है कि जिससे आपने माल परचेज किया है वो एक्चुअली गवर्नमेंट अकाउंट में वो टैक्स पे करे. और फोर्थ कंडीशन है कि उसने सेक्शन 39 की रिटर्न फाइल कर दी है. सेक्शन 39 की जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 3 रिटर्न है या 3B रिटर्न है. जबकि रूल के अंदर जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया जो रिटर्न है वो सेक्शन 37 की रिटर्न की बात कर रहा है और सेक्शन 37 की जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 1 है रिटर्न. तो देयरफॉर रूल के अंदर जो रिटर्न है और जो सेक्शन के अंदर रिटर्न है वो डिफरेंट है, दोनों के अंदर मिलाप नहीं है. तो देयरफॉर द रूल इज ओवरराइडिंग दिस कंडीशन इन दिस एस्पेक्ट्स आल्सो. सेकेंडली, इस सेक्शन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये क्रेडिट 10% मिलेगा या 20% मिलेगा जो अपलोड हुआ नहीं हुआ. ऐसी कोई कंडीशन पार्लियामेंट ने जब ये लॉ पास किया उसमें नहीं लिखी. मेरा ये मत है, जितने केस मैंने आज तक किए हैं, कि रूल मेकिंग पावर की बड़ी लिमिटेड अथॉरिटी होती है. रूल मेकिंग पावर ऐसी कंडीशन नहीं बना सकता जो लॉ को कंफर्म नहीं करती. अगर कोई भी रूल ऐसा बना है
जो सेक्शन के अंदर जो कंडीशन है उसके कॉन्ट्रेरी है, ऐसे रूल को स्ट्रक डाउन करवा सकते हैं आप, इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ मैं रिटर्न की वजह से नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न 37 के 39 के, वो तो एक पार्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनलेस आप ये चारों कंडीशन पूरी करें। अगर आपने चारों कंडीशन पूरी कर दी, उसके बाद आप पांचवी, छठी, सातवीं, you cannot add on further one more condition by the rules. If you are going to add all such condition, that means the rule is contrary to the act, और ऐसे रूल की वैलिडिटी नहीं रही। अब मैं इसमें सेक्शन 16 के ऊपर भी डिस्कस करना चाहता हूं कि इसके अंदर दो तीन बड़ी भयंकर कंडीशन। एक तो उन्होंने बी कंडीशन, सी कंडीशन में ये लिखा कि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया क्या नहीं। अब मैं एज ए बायर समझता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं अपने सप्लायर की रिटर्न भी फाइल करवाने के लिए जिम्मेवार हूं। अब मेरा सप्लायर अगर रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेती, वो परचेजर के ऊपर ऐसी कंडीशन क्यों डालती है? क्या ऐसी कंडीशन वैधानिक हो सकती है? मेरे हिसाब से इस ऐसी कंडीशन को भी आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है कोई माल को परचेज करना। सपोज आज मैं कंप्यूटर का व्यापारी हूं और आई परचेज कंप्यूटर्स फ्रॉम एक्स डीलर्स एंड सेल इट। अब मैं तो डीलर को पेमेंट कर दी, अब डीलर ने रिटर्न फाइल की नहीं की, डीलर ने टैक्स पे किया नहीं किया, हाउ आई कैन कंट्रोल ओवर इट? अगर उसके फाइल रिटर्न नहीं करने से मेरे को अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इसमें मेरी बोनाफाइडी का क्या मेरे को बेनिफिट मिला? बोनाफाइडी मेरी तो पूरी है। जो डिसऑनेस्ट है, जो या जिसके ऊपर एलिगेशन है वो सप्लायर है, जो सप्लायर है, तो ऐसे केसेस के अंदर मेरा क्रेडिट क्यों डिनाई होता है? इस कंडीशन को भी मतलब चैलेंज किया जा सकता है मेरे माइंड के अंदर। हम दो जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें इनडायरेक्टली इस टाइप की सिचुएशन डिस्कस है। एंड एक और कंडीशन इसमें डाली है कि जिसको आपने टैक्स पे किया है वो टैक्स भी एक्चुअली हैव बीन पेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। इसके ऊपर दो डायरेक्ट जजमेंट है, एक दिल्ली हाई कोर्ट का और एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जो मेरी स्लाइड में मैं अभी डिस्कस करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मेरे सप्लायर ने अगर ये पे नहीं किया टैक्स मेरे से लेके, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन वाज देयर इन द दिल्ली वैट एक्ट, पंजाब हरियाणा वैट एक्ट के अंदर भी ऐसी आती थी। उनको चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपने कंडीशन डाल दी है तो इस कंडीशन को ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा कि अगर सेलिंग डीलर टैक्स कलेक्ट करने के बाद पे नहीं करता है तो बायर जो है, जो परचेजिंग डीलर है, उसका क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते, उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आपको उसको डिनाई करना है, ओनली एंड ओनली इन वन कंडीशन यू कैन डिनाई, कि यू आर एबल टू प्रूव, दैट मींस डिपार्टमेंटल ऑफिसर आर एबल टू प्रूव देयर इज ए कनाइवेंस बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर दोनों के रजामंदी से, दोनों की कनाइवेंस से अगर ऐसा हो रहा है तभी क्रेडिट डिनाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लॉ में आप क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते। तो देयरफॉर यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोस जजमेंट्स कि जब लॉ में ऐसी कंडीशन है, सेलिंग डीलर अगर पे नहीं करता है टैक्स और रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो वो तो कंडीशन और भी फ्राजाइल है। कोर्ट तो फिर आपके फेवर में आएगी, क्योंकि टैक्स कलेक्ट कर लिया, रिटर्न फाइल नहीं की। देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजन हाउ दे कैन debarred me for not to allow to take the credit. I am surprised कि ये जितनी कंडीशन क्रेडिट लेने की लिखी हुई है चारों, मैं इनसे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि आपको याद होगा कि initially they were not able to start the e-way bill. Later on the e-way bill was started. What was the purpose behind the e-way bill? So that they can have the surveillance on the transaction every moment. कि जब भी गुड्स चले तो उन्होंने कह दिया कि गुड्स को सप्लाई करने से पहले आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे। फिर उन्होंने कह दिया आपका माल ट्रांसपोर्टेशन से एक पर्टिकुलर पीरियड में पहुंच जाना चाहिए, अगर इंटरप्शन आता है तो उस ई-वे बिल को आप एक्सटेंड कराएंगे। इसका मतलब यह है कि आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें आप 24/7 एसएससी के ऊपर एटलीस्ट फॉर द गुड्स जो 50,000 रुपए से ऊपर का है, जिसके सप्लाई होता है, जिसमें ई-वे बिल है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जब आप उस गुड्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो आप बाद में ये क्यों देखना चाहते कि मेरे पास बिल है क्या नहीं है? क्यों देखना चाहते मेरे पास माल आया क्या नहीं आया? क्योंकि जब मेरे पास माल आया उस टाइम आपका कैमरा नहीं देख पाता है, उस टाइम आपका ऑफिसर नहीं पकड़ पाता है, तो आप मेरे से बाद में कैसे पूछेंगे कि मेरे को माल आया था कि नहीं आया था?
क्योंकि मेरा चेकिंग करने अब 2020 में वो आएंगे, माल आया 2018 के अंदर, 2 साल के बाद माल तो पता नहीं कहां कंज्यूम हो गया, मेरे रिकॉर्ड्स को मानने को तैयार नहीं होंगे, तो ऐसे के अंदर हाउ आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई। तो मेरे ध्यान में एक स्टोरी है, मैंने जो क्वाइन की थी, मैं उस स्टोरी को सुनाता हूं, जो जीएसटी की स्टोरी नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसका जीएसटी से बहुत लेना देना है। मैंने एसोचएम के कई प्लेटफॉर्म पे इसको सुनाया ऑन द स्पॉट, ये क्वाइन की कि ऐसे सिचुएशन में कैसे किसी को सेटिस्फाई किया जा सकता है, क्योंकि ये जितनी कंडीशन आपके सामने है ना, उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने रूल 36(4) में एक और कंडीशन लगा दी, और 86 रूल आज हम डिस्कस नहीं करेंगे 86 से, उसमें एक और कंडीशन लगा दी कि आपका क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे। तो इतनी सारी कंडीशन क्यों लगा रहे हैं जब आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सर्विलांस से देख नहीं पाते? तो वो स्टोरी क्या है कि जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं या इंडिया में किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं और फॉरेन कंट्री में एयरपोर्ट पे जाते हैं, दोनों का जो एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंस है, वही जीएसटी का डिफरेंस है हमारी कंट्री का और फॉरेन कंट्री का। फॉरेन कंट्री में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं सभी कंट्री की बात नहीं कर रहा, जहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहां पे ट्रस्ट किया जाता है, बोथ वहां पे कस्टमर पे भी ट्रस्ट किया जाता है और वहां पे अपने सिस्टम पे भी ट्रस्ट किया जाता है, इसलिए वहां पे एक ही कंडीशन काफी होती है। हमारे यहाँ हमें अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं है, हमारे सिस्टम पे भी ट्रस्ट नहीं है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे हमें ट्रस्ट नहीं है, हमारे एसएससी पे हमें ट्रस्ट नहीं है, इसलिए इतनी सारी कंडीशन लगा देते हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं हमें तो लगता है कि इनवॉइस फेक है, हमें तो लगता है कि नहीं आप तो चोर है। भाई ऐसे तो सेटिस्फाई हम किसी को नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए फॉरेन में जब जाते हैं, हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं, नोबडी स्टॉप अस, कोई मेरे से ये नहीं कहता कि आप आई कार्ड दिखाओ, कोई ये नहीं कहता कि आपका बोर्डिंग पास दिखाओ या टिकट दिखाओ, हम सीधा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं और अपना बोर्डिंग पास लेने की कतार में लग जाते हैं, वहां बोर्डिंग पास मिलता है, पासपोर्ट देते हैं। इंडिया के अंदर क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फॉरेन के अंदर एक मेटल डिटेक्टर लगा रहता है, चाहे फुल बॉडी स्कैनर लगाओ, लेडी हो, जेंट्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी उसी में से जाते हैं, और जो सिक्योरिटी वाला है एक ही आदमी खड़ा रहता है और वो कभी किसी की बॉडी को टच नहीं करता है, और आप पार हो जाते हैं और फ्लाइट में बैठ के इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया के अंदर हम जब जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो पहले हमें एक सिक्योरिटी वाला चेक करता है गेट पे, और हमें दिल की धड़कनें तेज रहती है कि इतनी लंबी लाइन है कि फ्लाइट ना निकल जाए। वो हमारा आई कार्ड चेक करता है, वो हमारा अच्छी तरह शकल देखता है, कहता है आपका भाई ये हटा दो जो मास्क लगा रखा है, सबको चश्मा चुश्मा हटा के अच्छी तरह जांच करता है, फिर हमें एंट्री देता है। लेकिन 10 कदम दूर जब मैं उस लड़की के पास जाता हूँ एयरलाइंस की बोर्डिंग पास लेने, तो फिर कहते हैं आई कार्ड दिखा दो। आप इसको ध्यान से सुनना, ये आपका एक्सपीरियंस है जीएसटी से कोरिलेट करके। भाई अभी 10 मिनट पहले मैंने 10 कदम पहले एक पुलिस वाले को आई कार्ड दिखाया, उसने जांच पड़ताल की, तो आपको दोबारा जांच पड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? 10 कदम पे कोई 2-4 किलोमीटर नहीं चला गया। फिर आप देखो एक लकड़ी का मेटल डिटेक्टर लगा रहता है एयरपोर्ट पे, हम उसके अंदर से गुजरते हैं, हमारे घड़ी बेल्ट सब कुछ हटा देते हैं, फिर हम 5 कदम चलते हैं, फिर एक सीआईएसएफ वाला बंदा खड़ा रहता है, और फिर एक वो लंबी सी डंडी हाथ में लेके ब्लैक रंग की, उसको भी मेटल डिटेक्टर कहते हैं, फिर वो दोबारा से जांच करने लग जाता है। अरे भाई ये लकड़ी का डंडा तुम्हारे सामने लगा हुआ था, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसको फेंक दो, अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो दोबारा जांच करने की आपको जरूरत क्या है? इतना भय क्यों है आपके अंदर? इतना आप अपने अंदर से अचमंजस क्यों रखते हैं? आप किसी पे तसल्ली और विश्वास क्यों नहीं करते हैं? तो फिर वो चेक करता है, और वो चेक करने का आप तरीका देखना उसका कैसा होता है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं कोविड से पहले पिछले 15 साल से हर दूसरे तीसरे दिन एयरपोर्ट पे जाता हूँ, तो 2-3 बार तो अपनी बेल्ट के मारता है, उसको विश्वास नहीं है ठीक है क्या नहीं, जब तक पीपी की आवाज नहीं आ जाती। फिर वो चेक करता है, चेक करने के बाद उसको साइड में रख देता है, फिर वो अपने हाथों को आजमाता है, वो पूरे हाथ ऐसे लगाता है बॉडी पे, और पीछे बम पे भी 2-3 बार पंच करके देखता है, और उसको जब तसल्ली मिलती है और फिर आगे चलते हैं तो एयरलाइंस वाले फिर चेकिंग करने पे आई कार्ड दिखाओ लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, जीएसटी में भी इतनी सारी कंडीशन इसलिए डाली हुई है, ये नहीं कि हम जेन्युइन नहीं है, ये नहीं कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जब इतनी कंडीशन डालेंगे तो कभी न कभी तो 100 रुपए देने का मन कर ही जाएगा, कभी ना कभी तो आप थक ही जाओगे, कभी ना कभी तो हम आपको फंसा ही लेंगे, कभी ना कभी तो झूठा केस बना ही लेंगे। अब आप बताओ, मेरे पास ई वे बिल है, मेरे पास सब कुछ है, और मेरे पास जो इनवाइस था वो खो गया, वो कहेगा जी आपके पास इनवाइस नहीं है, इसलिए 16(2)(a) पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
भाई ऐसी कंडीशन आप लॉ में बनाते हैं, इसका पर्पस ये है क्या मेरे को क्रेडिट डिनाई करना है, या इसका पर्पस ये है कि एसएससी को हरेस करके पैसे बनाने हैं, या इसका मतलब ये कि मैं जेन्युइननेस ट्रांजैक्शन की देखनी है। अगर ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस हो गई तो कोई क्रेडिट पे ऐसे बंधन आपको लगाने नहीं चाहिए। इसलिए मेरा मानना है अगर आप इनको लॉ को ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां पे आपका स्टेक हाई हो तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन कोर्ट की तरफ मुंह रखना चाहिए। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि मैं एडवोकेट हूं, इसलिए बता रहा हूं कि लॉ के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन उन्होंने डाली है जिसको फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये दो जजमेंट आप इस स्लाइड पे देखें, पहले ऐसे केस हुए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ डिस्कशन का ही पार्ट है, कि अभी भी आप देखेंगे 16.4 के अंदर कंडीशन है, 16.4 के अंदर कंडीशन है, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं फिर ये जजमेंट डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी कि उन्होंने ये लगाई कि आपको अपने व्यापारी को जिससे माल खरीदा है 180 दिन में भुगतान करना है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कंडीशन वो क्यों लगाते हैं। अगर मैंने उसको भुगतान 180 दिन में किया या 365 दिन में किया या 2 साल में किया, इससे सरकार को क्या मतलब है? जिससे मैंने माल खरीदा उसने आपको टैक्स दे दिया, उसका क्रेडिट मेरे को मिलना है। वो कहते हैं नहीं, अगर आपने भुगतान नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं देंगे। अब आप कोविड की सिचुएशन को ही देखें, आज की सिचुएशन में कैश क्रंच है। अगर कोई फैक्ट्री वाला किसी रिटेलर को ये कहता है कि भाई पैसे नहीं है तो आप 2 साल के बाद पैसे दे देना, और अगर वो पैसे 2 साल में देता है और आपका क्रेडिट डिनाई हो जाएगा तो आप अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? सपोज मैंने एक हैंड सैनिटाइजर आज खरीदा और वो 100 रुपए में खरीदा और उसके ऊपर 10 रुपए जीएसटी दिया, या और आप अगर मैं उसको सेल करूं मेरा क्रेडिट ही डिनाई कर देंगे सिर्फ इस ग्राउंड पे कि मैंने 180 दिन में भुगतान नहीं किया, तो मैं उसको कैसे बेच पाऊंगा? फिर तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, मेरे को घाटा हो जाएगा, क्योंकि एमआरपी जो है उससे तो ऊपर बेच नहीं सकता, एक और मेरे अगेंस्ट केस बन जाएगा, क्रेडिट मेरे को डिनाई हो जाएगा, तो मैं घाटे की दुकान चलाऊंगा। अगर घाटे की दुकान ही चलानी है तो व्यापार कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब यह है जब यही सेक्शन हम डिफरेंट एंगल से डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं। मैं ये नहीं कह, ये कंडीशन डालने वाले ऑफिसर्स को सामने आना चाहिए, वो अपना रीजन बताए कि ये कंडीशन डालने का औचित्य क्या है। क्या आप व्यापारी को ये कहना चाहते हो कि आप जीएसटी का क्रेडिट लिए बगैर ही माल बेचो और आप घाटे में दुकान चलाओ? तो ये क्रेडिट तर्क संगत मेरे को नहीं लगती है कंडीशन, इतनी सारी कंडीशन उन्होंने डाली हुई है। अब 2 जजमेंट जो है, एक दिल्ली हाईकोर्ट का है वो ऑन क्वेस्ट मर्चेंडाइज का है, और दूसरा जो जजमेंट है गेरूलाल बालचंद का है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। दोनों के अंदर ऐसा कानून चैलेंज हुआ कि जहां पे हमने अपनी पेमेंट कर दी टैक्स की और वो टैक्स जमा नहीं कराया जिस व्यापारी से हमने माल खरीदा था, तो क्या मेरा एज ए परचेजिंग डीलर क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है वेट में? उन्होंने कहा ये डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली पैरा 33 के अंदर हाई कोर्ट ने क्या अपने विचार व्यक्त किए। टू कंक्लूड, नो लायबिलिटी कैन बी फास्टन ऑन द परचेजिंग रजिस्टर्ड डीलर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलिंग रजिस्टर्ड डीलर। अगर सेलिंग रजिस्टर्ड डीलर ने ट्रेजरी पे टैक्स जमा नहीं कराया, इसकी वजह से परचेजिंग डीलर के ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी का बर्डन नहीं डाल सकते। हाई कोर्ट कहती है आप सेलिंग डीलर के अगेंस्ट एक्शन लो, परचेजिंग डीलर के अगेंस्ट ओनली एंड ओनली एक ही ग्राउंड में आप एक्शन ले सकते हो, व्हेन देयर इज ए फ्रॉड एंड कोलिजन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑफिसर अगेंस्ट द परचेजिंग एंड सेलिंग डीलर। अदरवाइज इस कानून की हम ऐसे इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने काम करेंगे कि परचेजिंग डीलर के ऊपर इसका कोई भार नहीं आएगा। यहां मेरा सेकंड टॉपिक आज का जो डिस्कशन का मैंने रखा वो मैं खत्म करता हूं कि रूल 36(4) जो है वो मेरे हिसाब से तर्क संगत नहीं है। ये पैरा नंबर 3 में जो जजमेंट मैंने लिखा है आप ये पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसे बहुत सारे आपको जजमेंट मिलेंगे कहा कि कोई भी रूल जो कन्फर्म नहीं करता लॉ के प्रोविजन के, एक्ट के प्रोविजन के, ऐसा रूल कभी वैलिड नहीं होता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, आपके क्लाइंट को लगता है कि नहीं वो ज्यादा सफर कर रहा है ऐसे रूल की वजह से, जैसा पहले ही 2 केसेस में चैलेंज हो चुका है, आप भी चैलेंज कर सकते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन आ रही है, कल भी इसके ऊपर मेरे पास एक क्वेरी आई। एक सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है। मैं ये मानता हूं अभी थोड़े दिन पहले एक सीबीआईसी चेयरमैन ने एक पत्र इशू किया था सभी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को पूरी कंट्री में, उसकी जानकारी आपको होगी।
उसी की वजह से डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा ही इशूड ए लेटर बाय सेइंग दैट कि सभी ऑफिसर्स को यू हैव टू कलेक्ट इनपुट टैक्स, यू हैव टू कलेक्ट द इंटरेस्ट ऑन द ग्रोस अमाउंट। जिन लोगों ने रिटर्न समय पे फाइल नहीं की है उन सभी एसएससी से आप ग्रोस अमाउंट पे इंटरेस्ट क्लेम करें, ऐसा उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था। और ये पहले से भी चल रहा था, आदेश जारी करने से प्रॉब्लम और बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं सो दैट हमारी डिस्कशन, ये थोड़ी लंबी डिस्कशन है 15-20 मिनट की, आप उस पर फोकस कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट। मैं सभी अपने लिसनर्स को बता देना चाहता हूं, हम ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस डिस्कशन पे जितनी बार आपने पहले सुना होगा, शायद बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो पहले आपने नहीं सुने होंगे। ये मैंने सारे जितने लीगल आर्गुमेंट कोर्ट में लिए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले उस पर फोकस करना। सपोज आपकी 100 रुपए की जीएसटी लायबिलिटी है इस महीने की, 50 रुपए का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, 40 रुपए आपने टैक्स पे कर दिया है, 10 रुपए आप अपने कैश फ्लो की कंडीशन की वजह से आपके पास नहीं इकट्ठा हो पाए, आप पे नहीं कर पाए, और इस वजह से आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए टाइम पे। और रिटर्न पे अगर टाइम पे नहीं कर पाए फाइल, तो क्या इस वजह से आपसे पूरा का पूरा क्रेडिट लिया जा सकता है पूरे 100 रुपए पे और नॉट? ये हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा है। मेरे हिसाब से 100 रुपए पे आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। इंटरेस्ट चाहे आपने रिटर्न टाइम पे फाइल की या नहीं की, सिर्फ 10 रुपए पे ले सकते हैं। और हम डिटेल में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे उन्होंने सोल्यूशन करने का सोचा है। अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, और आप ये सोच रहे होंगे, आप बहुत सारे जो अटेंडीज हैं आज के वेबिनार के, वो सोच रहे होंगे मित्तल साहब इस टॉपिक को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब काउंसिल ने डिसीजन ले लिया कि ये अमेंडमेंट जो है सेक्शन 50 के अंदर जो प्रपोज की थी और जो हुई है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा 1 जुलाई 2017 से। कहने का मतलब when the GST Council has already taken a decision that the amendment in section 15 will be effective from 1st July 2017 and the interest liability will be calculated only on the net amount. क्या ये अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद भी कोई इशू बचता है? यस, इशू बचता है, और आपको बिल्कुल समझना है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप इससे सफर कर रहे हैं और आप डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि पहली बात तो क्या ये अमेंडमेंट लॉ में करनी जरूरी थी? क्या बिना अमेंडमेंट के ही वो काम चल सकता था? दूसरा, क्या अमेंडमेंट करने के बावजूद भी कुछ लोग सफर रहेंगे? यस, आंसर इज यस। मैं सभी का डिटेल में आपको आंसर दूंगा। इसका मतलब अमेंडमेंट हुई या नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत सारे लोगों को। थर्ड, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट समझना है, जो प्रोफेशनल समझना है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों। और अगर प्रॉब्लम हमें पता चल जाए क्यों आई है तो हम लॉ को, मेरे हिसाब से लीगल प्रोविजन को बहुत भली भांति समझ लें, तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी एडवाइस देने की जो क्षमता है, जो हम किसी को गाइड करते हैं वो बदल जाती है और हम ऑफिसर में नहीं फंसते। मैं आजकल बड़े दबन से कहना चाहता हूं, मैं बहुत बार कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि ज्यादातर प्रोफेशनल्स बार बार सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से मिलते हैं और उनसे मिल के उनकी बात करना, अपना वैसा ही दिमाग बना लेते हैं और हमें ये लगने लगता है कि ला वैसा ही है। ऐसा नहीं है कानून जो आपको ऑफिसर समझाना चाहता है। ऑफिसर की एक अपनी समझ है, प्रोफेशनल्स एक अच्छी समझ वाला है, उसका काम है लीगल एडवाइस देना, तो उसके चुगल में नहीं आना चाहिए। देखिए अब एक स्लाइड, मैं आपको जीएसटी काउंसिल की एक एजेंडा दिखाना चाहता हूं। 31st जो काउंसिल मीटिंग हुई थी और जो दिसंबर 2018 में, उसमें क्या लिखा था आप पढ़िए खुद और आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम कानून की नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ जीएसटी पोर्टल की वजह से प्रॉब्लम आई। देयरफॉर अगर कानून ठीक होता है और पोर्टल गलत होता है तो पोर्टल को ठीक करना पड़ता है। अगर आज वेबिनार के अंदर अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला जाए तो इंटरनेट की कमी की वजह से आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि भाई उसके कान खराब है या उसके मुंह खराब है। ये एक प्रॉब्लम कहां पे है उसको सॉल्यूशन निकालने के बजाय उन्होंने सॉल्यूशन को दूसरी जगह निकाला। इसके अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि
लॉ परमिट करता है कि आप सेल्फ असेस टैक्स करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है जमा कराने के तो भी आप फाइल कर सकते हैं। विदाउट फुल पेमेंट ऑफ टैक्स यू स्टिल कैन फाइल द रिटर्न, दैट रिटर्न मे बी ए डिफेक्टिव रिटर्न, बट जीएसटी पोर्टल ऐसी फैसिलिटीज नहीं देता है। मैं एक जो लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना। लो परमिट फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बट नो सच फैसिलिटीज येट मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। कानून आपको इजाजत देता है 50 रुपए का टैक्स आपने क्रेडिट ले लिया, 40 रुपए का पे कर दिया, 10 रुपए अभी आपके पास नहीं, आप बाद में जमा करा देना, लेकिन जीएसटी पोर्टल में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। और इसकी वजह से उन्होंने इसी के अंदर लास्ट लाइन में लिखा, दिस इनफ्लेक्सिबिलिटी हैज इंक्रीज द टैक्स बर्डन। इसकी वजह से ये इंटरेस्ट बर्डन, इसकी वजह से इंटरेस्ट बर्डन एसएससी पे आ गया। इसकी वजह से ऑफिसर ने सोच लिया कि ग्रोस अमाउंट पे इंटरेस्ट लेने। भाई अगर आपके पोर्टल में फैसिलिटीज नहीं है तो आप पोर्टल को ठीक करिए। आप पोर्टल अगर ठीक नहीं चल रहा है तो पोर्टल को ठीक करना था, उन्होंने वो नहीं किया और आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन की लायबिलिटी डाल दी। अब हम सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 50, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, सब सेक्शन 1। आप ध्यान से पढ़ें। आपको पता है, हम सबको पता है, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ही इंस्टीट्यूट के पास आउट है, बाकी कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू के अलावा जो एक ही इंस्टीट्यूट से पास आउट हो। फिर कोई ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आपको क्या पढ़ाया, आपका टीचर अच्छा था नहीं था। हमें ये देखना है कि इसके अंदर सेक्शन 50 के अंदर लिखा क्या है। सेक्शन 50 क्लियरली सेज every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or the rule made thereunder but fail to pay the tax or any part thereof, या तो पूरा टैक्स जमा नहीं करा पाया या पार्ट पेमेंट जमा नहीं करा पाया, तो जितने दिन का वो जमा नहीं करा पाया, थर्ड लाइन में देखे, और द एनी पार्ट thereof remain unpaid, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना। इसका मतलब आपको ये फैसिलिटीज दी गई है, आपको फैसिलिटीज दी गई है कि आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, और जितनी पार्ट पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। इस सेक्शन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की तो आपको टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको ये लिखा गया है रादर कि अगर आप पार्ट पेमेंट नहीं कर पाते तो उसी पे इंटरेस्ट देना है, और उस पे इंटरेस्ट देने के लिए कोई संघर्ष भी नहीं करता, कहने का मतलब कोई डिस्प्यूट भी नहीं करता। डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ, जब उन्होंने ग्रोस अमाउंट पे इंटरेस्ट मांगा। और ये क्यों इंटरेस्ट मांगा, क्योंकि उन्होंने 2 नई टर्म क्वाइन की है जीएसटी लॉ के, और बाद में पता चलता है कि क्यों की है। अब मैं फिर एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पे आपको हंसी आएगी सुन के कि एक भाई को ठेका मिला कहीं पुल बनाने का किसी शहर में, लेकिन उसका दूसरा भाई जो है बड़ा रो रहा था, कहता है भाई साहब मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा पेशेंट, मेरा हॉस्पिटल चल नहीं रहा। तो जब जिसको ठेका मिला तो उसने बड़े बड़े 2 गड्ढे कर दिए उस पुल के ऊपर। अब आप सोचोगे कि नहीं गलती से रह गए होंगे, आप ये सोचोगे उसका दिमाग बड़ा सातिर था, उसने इसलिए गड्ढे किए, बोला 100 में से अगर 10 आदमी भी इसमें गिरे और 10 में से अगर 5 भी मेरे भाई के हॉस्पिटल में चले जाए तो वो चल जाएगा। यही सोच के मैं बता रहा हूं कि जीएसटी लॉ में भी इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हुए हैं। वो गड्ढे इसीलिए किए हुए हैं कि कहीं न कहीं तो व्यापारी हमारे पास फंसे, कहीं न कहीं तो हम कंसल्टेंट को भी ये गुमराह कर सके कि आपको कानून नहीं पढ़ने आता है। अभी थोड़े दिन पहले बॉम्बे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया, वो कह रहे हैं कि हम किसी से मिलने गए कमिश्नर से, और वो कमिश्नर जाते ही कहता तुम ही तो चोरी सिखाते हो। अब जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कमिश्नर ऐसा आग बुलबुला होता है, वो इसलिए नहीं होता कि चोरी सिखाते हो, इसलिए होता है कि भले कंसल्टेंट बीच में आ गया तो उसकी गाड़ी चली जाएगी। अरे भाई कमिश्नर को अपना काम करना चाहिए, उसको ये फालतू बोलने की जरूरत क्या है हम चोरी सिखाते नहीं सिखाते। चोरी तो उसको सीखनी चाहिए कमिश्नर को कि आजादी के बाद से आज तक 100 केस वो बनाते हैं और 85 वो हार जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 85 में से कितने बोगस केस बनाते होंगे। अगर वो जेन्युइन केस बनाते तो उनका पास परसेंटेज 85% होता, 15% नहीं होता। इसका मतलब हमें इस कानून को ये पढ़ना है कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उनको कब बल मिला, किसी एक ऑफिसर ने तेलंगाना में ऐसे ग्रोस अमाउंट पे टैक्स मांगा, एंड दैट पर्सन, दैट इज द मेगा इंजीनियरिंग, वेंट टू द कोर्ट। बाई चांस आर्गुमेंट हुआ और कोर्ट ने एसएससी के अगेंस्ट जजमेंट दे दिया
डिपार्टमेंट के फेवर में दे दिया, ये कह के कि ग्रोस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। और जब ये जजमेंट आ गया तो डिपार्टमेंट बड़ा खुश हो गया, उन्होंने पूरे देश के अंदर झंडी फैला दी कि नहीं अब तो पूरे पे ही देना पड़ेगा, देखो ये जजमेंट आ गया। जब हम जजमेंट दिखाते हैं ना इवन सुप्रीम कोर्ट का, तो कहते हैं नहीं इसमें ये डिफरेंस है, उसमें वो डिफरेंस है, उसमें वकील डिफरेंस है। एक हाई कोर्ट का दिखा दे तो बोला आपके एरिया का नहीं है, दूसरा नहीं है, उल जलूल बातें करते हैं। लेकिन एक केस मेरे पास आया लाइफ लैंडमार्क लाइफस्टाइल का, जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके अंदर इसी जजमेंट को मेगा इंजीनियर को कोट करके हुए 9 करोड़ रुपए का ब्याज मांगा था। टोटल जो टैक्स था वो 3 करोड़ रुपए था, उसके ऊपर ब्याज मांगा 9 करोड़ का। तो मैंने बेंच को कहा, मैंने कहा जज साहब ऐसा कौन सा मशीन लगी हुई है जो 2 साल जीएसटी आए हुए नहीं हुए, जिसका इंटरेस्ट 3 करोड़ पे 9 करोड़ हो जाए? हम तो वही दुकान खोल लेते हैं, हमें क्या कंसल्टेंसी देने की जरूरत है? जब हमने उनको समझाया कि ये इंटरेस्ट मांग रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे भी, वो कार के व्यापारी हैं ये। अब एक कार कोई 10 लाख की खरीदेगा और 11 लाख में बेचेगा और 10 लाख पे आप उसको ब्याज मांगोगे तो वो तो व्यापारी अपनी दुकान ही छोड़ के भाग जाएगा, कैसे वो दुकान चलाएगा? और दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें इंटरिम स्टे दिया मई 2019 में। उसके बाद मेगा इंजीनियर के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई तेलंगाना हाई कोर्ट में, और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुई, और उसके बाद वहां पे भी वही इंटरिम ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि कोई कोर्सिव मेजर नहीं लेगा। अभी फाइनल जजमेंट इनके अंदर आने बाकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड आ गया, अदरवाइज 27 मई की डेट थी, तो हम उसके अभी मई की अप्रैल की डेट थी, अदरवाइज फाइनल जजमेंट भी शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। अभी देखना है कि फाइनल जजमेंट क्या आएगा। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने से भी क्या इसका सोल्यूशन होता है? मेरे मायने में बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होता। थोड़ा सा भी आप कंसंट्रेशन करेंगे, इट विल बी मार्वेलस सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम एक ऐसी कानून को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें यह पता चलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने के बाद भी उन्होंने कई लोगों को रिलीफ नहीं दिया है। देखिए सेक्शन 50 के अंदर उन्होंने एक प्रोविजो डाला है, ये सेक्शन 50 आपके स्क्रीन पे जो प्रोविजो डाला है, उस प्रोविजो में क्या लिखा है? एक एक्सेप्शन दिया है, दिस प्रोविजो शेल नॉट अप्लाई टू whom the so cause notice under section 73 or 74 has already been issued। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेक्शन 73 या 74 के अंदर so cause नोटिस ऑलरेडी आ चुके हैं तो उसके लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट अप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का डिसीजन कब लिया? ये डिसीजन अभी लिया, उसके बाद कोविड लग गया 2020 में डिसीजन लिया मार्च में, अभी वो अप्लीकेबल भी नहीं हुआ। अब बाय द टाइम बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी सो को जा चुके हैं, कुछ लोगों को वो ऑलरेडी इश्यू कर देंगे जब तक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगी। अगर उन लोगों के लिए ये अप्लीकेबल ही नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो वहीं जाएंगे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो आप ही के पास आएंगे कि यू हैव टू मेक श्योर देयर केस कि दिस इज ए वंडरफुल केस, दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड even in those cases where they have issued the so called notice for asking you to pay the interest on the gross amount। तो पहला तो ये है कि अमेंडमेंट आने के बाद भी आपको उन लोगों को बचाना है, तो इसके ध्यान से इसको जिसने डिस्कशन को सुना उनको लाभ होगा और वो अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, उन्होंने लिखा है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको बेनिफिट दे देंगे अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की। लेकिन मैंने बताया देयर आर टू इन्होंने टर्म क्वाइन की है, एक है इनपुट क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला बेनिफिट तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का नहीं दे रहे। तो सपोज एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, फिर एग्जांपल दोहराता हूं, 100 रुपए का आपको टैक्स देना था, आपने 50 रुपए का टैक्स दे दिया, 50 रुपए का क्रेडिट था, 40 रुपए का टैक्स दे दिया, 10 रुपए का टैक्स नहीं दे पाए। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो है वो आपको 50 रुपए का बेनिफिट तो दे रही है, लेकिन जो 40 रुपए आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो उस पर भी इंटरेस्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस ऑफिसर से आप मिलते हो वो आपको एक बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है, ये आपका लेजर है, ये पैसा सरकार के पास नहीं आया, ये सरकार के पास कब आएगा? जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे। अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे, अगर ये पैसा सरकार के पास नहीं गया, मेरे पास ही है, तो मैं ही यूज कर लेता हूं। वो कहते हैं आप यूज नहीं कर सकते, आप रिफंड नहीं ले सकते, आप इसको पैसे को टच नहीं कर सकते,
दूसरा, ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया है, ये पैसा आपने टैक्स के रूप में जमा कराया है, फिर भी वो कहते हैं नहीं ये पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने जो बड़े बड़े गड्ढों की बात की, उन्होंने 2 गड्ढे बनाए। जैसे उस आदमी ने 2 गड्ढे अपने भाई का अस्पताल चलाने के लिए बनाए थे, इन्होंने 2 गड्ढे बनाए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसके अंदर आप पड़े रहो और आपसे वो ब्याज कमाते नहीं। अरे भाई, इन लेजरों की हमने तो कहानी बनाओ, हमने तो बनाए नहीं, आपके वेबसाइट पे बनते हैं, आपकी वेबसाइट है, उसके ताले की चाबी भी आपके पास है, आप ये लेजर हटाई क्यों नहीं देते? अगर ये लेजर नहीं होते ना तो ग्रोस अमाउंट पे आपसे कोई इंटरेस्ट मांगता भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम बहुत भयंकर है। जैसे जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं जीएसटी लॉ को, तो मेरे को तो ऐसे लगता है ये बड़े बड़े कई गड्ढे बना रखे हैं। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैंने दूसरा एग्जांपल देके बताया, इतनी सारी चेकिंग रखी हुई है, चेकिंग नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। पर इंडियन आदमी, क्योंकि हम उसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि चूहा आएगा दूध पी लो, बिल्ली आ जाएगी दूध पी लो, हमारे को एक डर का माइंड है। तो हम 100 में से 50 हिंदुस्तानी, तो जैसे वो सुप्रीम बात करता है, हाँ भाई कितने पैसे लेगा, वो कहता है देखो मेरा पर्पस सब हो गया। वो कानून की बात नहीं करता है। कानून की बात करे तो हमारा लिटिगेशन जो है ना, जेन्युइन लिटिगेशन होता, यहाँ पे इतना फेक लिटिगेशन नहीं होता। तो ये डिस्कशन भी मैं यहीं खत्म करता हूं। मैं समझता हूं कि आपको इस डिस्कशन में काफी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से जरूर बेहिचक पूछेंगे। सर चैट में काफी क्वेरीज हैं, यदि कहो आप मैं पढ़ दूं या आप पढ़ करके रिप्लाई देंगे सर? नहीं नहीं, डिस्कशन अभी बहुत है। अगर आप कहो कि इसी पे यहीं पे करके अभी क्वेरी लेनी है तो हम वैसा ही करें, अभी कुछ और टॉपिक डिस्कस करने तो हम वैसा करें। अच्छा अच्छा, नहीं जैसा एज यू लाइक सर, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। हमें तो अभी टाइम है, 1 घंटा तो है ही हमारे पास, 6 बजे कंक्लूड करना है। हाँ, तो हम आधा घंटा और डिस्कस करते हैं पहले। जी सर, श्योर सर श्योर। इतने सारे मेंबर्स जुड़े हैं तो उनको जी ये जी ना लगे कि अग्रवाल साहब ने टॉपिक बीच में छुड़वा दिया। तो नहीं, 241 मेंबर है सर, बाकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। हाँ, तो थोड़ा अगर 15-20 मिनट और कर लेते हैं, फिर क्वेरी पे डिस्कशन करेंगे। डन सर, डन, ओके सर। अभी देखिए एक नया रूल है, वो रूल 121। इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैं बताने जा रहा हूं आपको। हो सकता है ये पहले आपके ध्यान में शायद ना आई हो, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जहां पे भी चर्चा की उन सबको बड़ा नया लगा ये डिस्कशन। There are 2 things in this rule if you can read the rule carefully. First, this rule empowered the officer for verification of the Tran 1 return. जो आपकी ट्रांजिशनल क्रेडिट की रिटर्न आपने फाइल की ट्रान 1, उसको वेरिफिकेशन की पावर देता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रूल ये पावर दे सकता है? क्या? मेरा आंसर है नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता वो डिस्कस करें। सेकेंड, दिस रूल आल्सो एम्पावर्ड कि ट्रान 1 का जो क्रेडिट का रिकवरी प्रोसीडिंग है उसके लिए सेक्शन 73 एंड 74 में आपको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके माइंड में, क्या रूल ऐसी पावर दे सकता है कि सेक्शन 73 और 74 में शो कॉज नोटिस दो, जब सेक्शन 73 और 74 के अंदर ये पावर नहीं है शो कॉज नोटिस देने की? तो ऐसा रूल कैसे बना सकते हैं? दोनों बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान देना कि 73 और 74 में क्या पावर है, क्या नहीं है, क्या ये शो कॉज दे सकते हैं कि नहीं। ये देखिए सेक्शन 73 74 बिगनिंग में मैंने कहा था, शायद इसमें प्रेजेंटेशन में नहीं है, मेरे को मिल गया। सेक्शन 73 74 बिल्कुल आपको ब्रीफली पढ़ना है। सिर्फ सेक्शन हेडिंग जो है दैट will make you clear very much the so called notice under this section could be if input tax credit has been wrongly availed or wrongly utilized. आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, फ्रॉड करके लिया, सप्रेशन करके लिया। हम बाकी कंटेंट्स पे कंसर्न नहीं है कि आपने टैक्स दिया नहीं दिया, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस whether the tran 1 credit, whether the transitional credit and the input tax credit is the one and same. Answer is no. How answer is no? You briefly see the next slide, जिसके अंदर डेफिनेशन ही जीएसटी लॉ में लिखी हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस इनपुट टैक्स, एंड इनपुट टैक्स डिफाइंड है जीएसटी लॉ में। You can see on the screen, input tax means either IGST
CGST, SGST या जो GST के अंदर रिवर्स टैक्स की पेमेंट की है। कहने का मतलब जितने भी टैक्स के कंपोनेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट में लिखे गए हैं, these are only those credit जहां पे जीएसटी लॉ आने के बाद ही ये टर्म स्टार्ट हुई है। कहने का मतलब ये ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ, जबकि ट्रान 1 का जो क्रेडिट है ये वो वाला क्रेडिट है जो 1 जुलाई 2017 से पहले का है, जो अप टू 30 जून 2017 तक का है। चाहे वो वेट का क्रेडिट है, चाहे वो हमारा क्रेडिट है उसका एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट है, चाहे वो हमारा सर्विस टैक्स का क्रेडिट है। ये सिर्फ उन क्रेडिट की ये बात कर रहा है और किसी क्रेडिट की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे के अंदर क्या ये जो क्रेडिट की बात कर रहा है क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट सेम है? इसका आंसर है नो। देयरफॉर अगर कोई आपको ट्रान 1 का सेक्शन 73 या 74 में नोटिस देने की कोशिश करे, आप उसके साथ उस टाइम झगड़ा नहीं करेंगे। आपको अगर नॉलेज आ गई है, उस नॉलेज का बेनिफिट लेना है, आप उसको गलत शोकॉज नोटिस देने देंगे, आप अपने आर्गुमेंट समय आने पे लेंगे और आप उसमें जीत के फ्लाइंग कलर से आएंगे। क्लाइंट भी मुंह मांगी फीस आपको देगा। और अगर आप सुपरिटेंडेंट कमिश्नर को यही बता दोगे कि मित्तल साहब को सुन के आए हैं और ये आप दे नहीं सकते, तो कहेगा अच्छा चलो दूसरे कहीं दे सकते हैं, तो वहां पहुंचा देगा। तो आप जीता जीता केस हार जाएंगे। तो कभी कभी नॉलेज लेना और नॉलेज का इस्तेमाल दोनों आने चाहिए। जैसे मैं कईयों को कहता हूं कि घर में जब चाकू होता है उसकी बड़ी महत्व होती है, और आजकल तो सब मेरे मित्र चाहे वो मेल भी हैं वो भी चाकू चलाना सीख रहे हैं। कोविड में अपनी पत्नी का हाथ बटा रहे हैं किचन में खाना बनाने में, नहीं तो कौन। तो इसके अंदर यह है कि उस चाकू का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल सब्जी काटने के बजाय मारपीट में करेंगे तो वो बड़ा घातक हो जाता है। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस समय पे करना है ये मैंने बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही चतुर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सब लोगों को पता है। आप अपनी नॉलेज का भरपूर फायदा उठाएं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नोटिस 73 74 में दे सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशनल क्रेडिट का शोकोज नोटिस आप जीएसटी के सेक्शन 73 74 में नहीं दे पाएंगे। अगर वो देते हैं तो आप सक्सीड कर जाएंगे। अब एक पॉइंट मैंने और बताया था रूल 121 के अंदर कि वो इसकी वेरिफिकेशन चाहता है ट्रान 1 की कि मैं रूल के अंदर करूंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कोई भी रूल ऐसा बनाते हैं जो सेक्शन को ओवर पावर्ड करता है तो उस रूल की वैलिडिटी नहीं होती। देखिए जीएसटी लॉ में एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि बहुत सारे जीएसटी लॉ में प्रोविजंस बने हुए हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं कि बहुत सारी पावर है कि वो रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है, चाहे तो वो ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट कर सकता है, सर्च सीजन कर सकता है। लेकिन ट्रान 1 की जो वेरिफिकेशन की पावर रूल 121 में, इसका मतलब अगर इन सेक्शनों में पावर है तो वो वही इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसके अलावा वो पावर इस्तेमाल करेगा तो गलत होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ऑल माय डियर फ्रेंड शुड नोट डाउन, GST has only one benefit, important benefit for all assessees, which I find out that the first time in GST law, which was not there in the earlier law in so detail, particularly in the central law, VAT में फिर भी थोड़ा बहुत था कि जो भी नोटिस दिया जाएगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिया जाएगा। जितनी भी वेरिफिकेशन हो, सर्च हो, सीजर हो, सम्मन हो, उसके लिए फॉर्म बना रखे। तो जब वो आपको लेटर भेजता है, सिंपल लेटर, अभी आपको पता है निर्मला सीतारमण जी ने एक डिसीजन लिया कि कोई भी लेटर आपके पास अगर कंप्यूटर जनरेटेड नंबर से नहीं आता वो वैलिड नहीं है। मैं दूसरी कहानी कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई लेटर पे सिंपली आपको नोटिस देता है वो वैसे ही वैलिड नहीं है। अब वो लेटर पे नहीं दे सकता, उसको कोई ना कोई सेक्शन यूज करना है, उस सेक्शन के तहत कोई रूल बना हुआ है, रूल के अंदर एक फॉर्म बना हुआ है, उसी फॉर्म में देना है। तो जनरली जो ट्रान 1 की आपके पास, मेरे क्लाइंटों के पास या मेरे को जो बताया गया, सिंपल एक प्लेन पेज पे लेटर आता है, हम आपकी ट्रान 1 वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो इसके कंसोनेंस में नहीं है जितने सेक्शन में बता रहा हूं। इसलिए आप उसको यही सिंपली कहें कि जीएसटी के अंदर कोई भी नोटिस देने के लिए, कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्म बना हुआ है, उसी फॉर्म पे आपको नोटिस दें। अदरवाइज कह दे कि मैं आपको इसकी रिप्लाई नहीं दूंगा, आप पहले सेक्शन बताएं कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आप आगे की कार्रवाई चला सकते हैं। एक और टॉपिक मैं ले लेता हूं। अभी मैंने समय कुछ मांगा था कि 15-20 मिनट और डिस्कस कर लेते। सर प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं सर। तो एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विच इज ए वेरी करंट टॉपिक। मैंने कोविड से पहले इसके ऊपर पिटिशन फाइल की है कि मल्टीपल जुरिडिक्शन का टॉपिक है। अब जीएसटी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि देयर इज अ मल्टीपल जुरिडिक्शन।
पहले सेंटर के जुडिक्शन होते थे, अब सेंटर स्टेट दोनों का है। नाउ जीएसटी लॉ जो सेक्शन 6 है वो क्या कहता है, और जो एक इन्होंने सर्कुलर भी इशू किया जीएसटी काउंसिल ने, जीएसटी काउंसिल हैज इशूड ए सर्कुलर, कि उस सर्कुलर में उन्होंने ये लिखा है, ये जो सर्कुलर आपकी साइट पे है, कि ईच एसएससी विल बी डिवाइडेड, जुडिक्शन उसका डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट का। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे जब जीएसटी पोर्टल पे, तो वो लिखते हैं कि आपका जुडिक्शन सेंटर का है या स्टेट का है, उन्होंने डिवाइड कर दिया जुडिक्शन को। द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज आपका जुडिक्शन सेंटर पे है, तो स्टेट टैक्स ऑफिसर जो है, स्टेट का जीएसटी ऑफिसर है, क्या वो आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, विद इन इवन सेंटर के अंदर भी मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्होंने खोले हुए हैं। एक ऑडिट डिपार्टमेंट खोला हुआ है, एक इन्होंने एंटी विजन डिपार्टमेंट खोला हुआ है, एक इन्होंने डीजीसीआई जिसको अब डीजीजीआई कहते हैं वो खोला हुआ है। इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट खोले हुए। तो दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, सपोज एक ऑडिट डिपार्टमेंट वाला जीएसटी वाला ऑडिट करके चला गया, और ऑडिट के ऊपर उन्होंने सर्टेन अपने व्यू रखे, और कुछ उन्होंने टैक्स की डिमांड निकाली। व्यापारी ने सोचा कि हर केस में लड़ना ठीक नहीं है, और उन्होंने उसका भुगतान कर दिया। तो एक पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से 2017, 18, 18, 19 और का उसने कंप्लीट ऑडिट किया, उसके बाद उसने डिमांड निकाली, वो पे कर दी। अब थोड़े दिन के बाद एक डीजीजीआई वाला ऑफिसर आता है या स्टेट टैक्स ऑफिसर आता है, वो कहता है कि नहीं अब मैं जुडिक्शन एक्सरसाइज करूंगा, कि पिछले वाले ऑफिसर ने कुछ ये नहीं देखा वो नहीं देखा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? मेरे दोनों के आंसर है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं आपको कुछ जजमेंट दिखा रहा हूं, उसकी रूपरेखा भी बता रहा हूं कि पहली बात, और सेंटर और स्टेट का अगर कंकरेंट जुडिक्शन भी है तो लॉ ये कहता है कि पहले जिसने जुडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद दूसरा ऑफिसर जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये दो जजमेंट मैंने आपको सामने कोट किए हुए हैं। सेकंड ये है कि जिसका जुडिक्शन उस जीएसटी काउंसिल के सर्कुलर के हिसाब से एक बार निर्धारित हो गया सेंटर को, तो मेरे मायने में फिर स्टेट टैक्स ऑफिसर उस पर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या जिसका जुडिक्शन स्टेट में निर्धारित हो गया तो सेंटर टैक्स ऑफिसर उसका जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप सर्कुलर को गहराई से पढ़ेंगे तो उसका मेन पर्पज यही था कि हमें मल्टीपल असेसमेंट फेस ना करना पड़े, मल्टीपल हैरेसमेंट एजेंसी से फेस ना करनी पड़े। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं अपने ही कुछ 2-3 जजमेंट है वो आपके सामने कोट कर रहा हूं, कि पहले भी सर्विस टैक्स और एक्साइज के अंदर ऑडिट करते रहे हैं, और ऑडिट होने के बाद, असेसमेंट होने के बाद, सोको जाने के बाद फिर डीजीजीआई वाले या प्रिवेंटिव वाले आते थे, वो उसी एसएससी के अगेंस्ट उसी पीरियड का दोबारा से वेरिफिकेशन करना चाहते थे और डिमांड करना चाहते थे। वो हमने चैलेंज किया। जैसे ई बीज के अंदर वो हर साल ऑडिट होता था, हर साल डिमांड निकलती थी, सब कंटेस्ट किए, हम जीत गए। उसके 5 सालों के बाद डीजीसीआई वाले ऑफिसर आते हैं, एमडी को अरेस्ट करते हैं, उधर सर्च करते हैं और 17 करोड़ रुपए की डिमांड निकाल लेते हैं कि जो आपने सर्विस रिटर्न में एग्जेम्पशन क्लेम किया उसके इंटाइटल नहीं हो। हाई कोर्ट ने इसमें 2 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कही कि जब रूल के अंदर ऑडिट हो चुका है, वो कंप्लीट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि वेरिफिकेशन रह गया है, तो इसका मतलब मल्टीपल जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, डीजीसीआई हैज sought to do the reassess that service tax liability of EBs for a past period without resorting any non provision of the law। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्च की वो इनलीगल है, जो अरेस्ट की वो इनलीगल है, जो 17 करोड़ रुपए जमा कराए वो गलत है, और साथ में उसको मुकदमा दायर करने की अनुमति दी कि आप कंपनसेशन भी गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं, आपको गलत तरीके से अरेस्ट करके अरेस्ट किया। तो ये एक था। दूसरा एक एनबीसीसी का जजमेंट है, जिस जजमेंट के पैरा 32 में आप देखेंगे तो उसमें अगेन डीजीसीआई ने ये कंटेंशन ली, ऑडिट इज ए पीरियडिकल चेक, वी आर ए इन्वेस्टिगेटर, हमें इन्वेस्टिगेशन की पावर है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोर्ट ने कहा नो, वी डोंट एक्सेप्ट योर आर्गुमेंट, कि कोर्ट ने गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि जो ऑडिट है वो कंप्लीट वेरिफिकेशन है, और इसका मतलब आप वो वेरिफिकेशन कर चुके हो तो आप फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं कर सकते। एक मल्टीपल असेसमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण विराम कोर्ट ने लगाया है। तो देयरफॉर ये मल्टीपल जुडिक्शन का जो इश्यू है, अभी तो जीएसटी में स्टार्ट एक बिगिनिंग है, ये आपको कई तरीके से फेस करना पड़ेगा। इफ यू विल नाइसली अप्लाई दिस जजमेंट्स तो यू कैन गेट बेटर बेनिफिट इन ऑल सच केसेस।
कलकत्ता हाईकोर्ट में अभी कुछ पिटिशन पेंडिंग है जो हमने चैलेंज की है, जिसमें सेंटर का जुडिक्शन था और स्टेट के जुडिक्शन ने इंस्पेक्शन की शोकॉज नोटिस भी अब इश्यू कर दिया है और ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स उनसे मांगा है, तो हमने उसको चैलेंज किया हुआ है। टैक्स नहीं लगता है वो एक अलग इश्यू है, जुडिक्शन एक अलग इश्यू होता है। देयरफॉर आपके अगर ध्यान में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो जीएसटी आने के बाद क्या पुराने केसेस के अंदर वो ऑडिट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इश्यू है। जैसे मैंने देखा है कि जीएसटी आने के बाद सर्विस टैक्स के अंदर या सेंट्रल एक्साइज के अंदर जीएसटी ऑफिसर ऑडिट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से, रांची हाई कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से, सब जगह से स्टे लिए हुए हैं कि ऐसे केसेस में उनको पावर नहीं है ऑडिट करने की। लेकिन फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी आएगी तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मैं समझता हूं कि अभी अगर आप कहेंगे तो हम टॉपिक को इतना ही रख सकते हैं। मोहित मिंडल का जजमेंट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा। एंड बाकी मैं टॉपिक अभी समय की अभाव में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर समय परमिट करेगा या किसी दूसरे वेबिनार में बाकी टॉपिक ले सकते हैं। लेकिन मैं राजेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी है ये आप फ्रीली सभी को सर्कुलेट कर सकते हैं, सभी के बेनिफिट के लिए, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। धन्यवाद। आपकी वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को भी सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो आप पीपीटी भेजेंगे सर मिल चुकी है मेरे को पीपीटी, ये भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सर। थैंक यू सो मच। अब हम क्वेरी को ले लेते हैं। अगर जब आपने बताया काफी क्वेरी है, फिर भी टाइम परमिट करेगा तो और टॉपिक देख लेंगे। हाँ पहले सर क्वेरी ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। यस। मैं सबसे पहले अपने आरडी कागरा साहब हैं, अनम्यूट कर रहा हूँ। कागरा साहब, आस्क योर क्वेश्चन। मित्तल सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज की मीटिंग में सर हमारे कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट माधव सुरेखा जी अटेंड कर रहे हैं। चलो सर ये आपके नाम से कि मित्तल साहब का जरूर सुनना हमको। थैंक यू। हाँ, और आपकी क्वेरी ले लेते हैं, उसके बाद में और बात करेंगे। ठीक है। क्वेरी नहीं है सर आपकी कोई? नहीं, क्वेरी बाद में देंगे। हाँ कागरा साहब, आपकी कोई क्वेरी है? नहीं, मेरी क्वेरी तो सॉल्व हो गई, सब कर दी इन्होंने, जितने गड्ढे हैं सब भर गए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ऋषभ जी आस्क योर क्वेश्चन। Good evening, Mittal sir. Good evening. Sir, actually, I am a senior student and right now I am doing articleship. So I was just want to ask कि अगर मुझे ऐसे फ्यूचर में वेबिनार्स के लिए कोई इंटीमेटेशन चाहिए तो वो कैसे मुझे मिल पाएगी, एंड प्लस में जो अभी ये रिसोर्स रही पीडीएफ है वो कैसे मुझ तक शेयर हो पाएगा? तो राजेश जी बताएंगे ना आपको। अरे भैया आप, ऋषभ जी आस्क योर क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन थोड़ी है आपका। सॉरी, राजीव जी आस्क योर क्वेश्चन। राजीव जी नमस्कार जी। आस्क योर क्वेश्चन राजीव जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब का, आपका एनलाइटन करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है सर, एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज करी है कि लिमिटेशन जो अलग अलग लॉज के अंडर है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो सर क्या ये जीएसटी के सारे प्रोविजंस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी? क्योंकि कुछ तो नोटिफिकेशन 33/2020 के अंतर्गत उन्होंने टाइम लिमिट बढ़ा दी है। yes. अगर कोई टाइम लिमिट नहीं बढ़ाई है तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर्स हैं उसके अंतर्गत ये अपने आप बढ़ जाती हैं? सर आपका इसमें भी चाहिए था। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इनिशियली पढ़ा था, अभी मेरे पास नहीं है, वो उन्होंने हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर जो भी हम अपील या जो भी चीज डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी भी जगह आपको कोई भी चीज फाइल करनी है। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये है कि जैसे आपने बताया कि कुछ लिमिट उन्होंने बढ़ाई, कुछ कल भी शायद बढ़ाई है। अगर आपको कहीं ऐसी फेस होती है, आप कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट देंगे। अगर आपका टाइम वाज एन इसेंस तो आपको इस कोविड लॉकडाउन का बेनिफिट मिलेगा और आपको कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपकी रिलीफ जरूर मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे आप अपील फाइल करते थे तो कमिश्नर के पास अपील फाइल करते हैं 30 दिन का टाइम होता है और कमिश्नर को सिर्फ 30 दिन की पावर है कॉन्डोन करने की। कहने का मतलब टोटल 60 दिन का पीरियड है। अगर आपका वो पीरियड चला जाए तो वो कॉन्डोन नहीं कर सकता। ऐसे केस में आप रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो आपको एक्सटेंशन जरूर मिलेगी, मेरा ये मानना है।
ठीक सर। सर इसी विवेक से विवेक ठीक जी आस्क योर क्वेश्चन। विवेक जी, विवेक जी, Hello, विवेक sir. Is आनंद it, जी। sir audible, sir? यस। Yes. Sir, good evening, sir. सर वन ऑफ द मैंने जब क्लाइंट्स का 3B का रिटर्न्स वेरीफाई किया तो सर अप्रैल 19 से जनवरी 20 तक he has filed all the returns belatedly, sir, without paying any single rupee of interest. वो ब्याज कुछ भी नहीं पे किया था सर। अभी बेटर पोजीशन ये है कि सर अभी पूरा पे कर दे सर फ्रॉम अप्रैल से अभी जनवरी तक, नहीं तो कोई क्वेरी आने के बाद कुछ पे करना अच्छा रहेगा सर। व्हाट इज योर ओपिनियन सर? देखिए, there is no interest on interest. Interest you are liable to pay if there is a delay in payment of tax. अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया विदाउट इंटरेस्ट पे किए तो आपको नेट अमाउंट जितना पेमेंट आपने डिले किया उसी पे इंटरेस्ट देना है। अगर आपने टैक्स टाइम पे कर दिया, रिटर्न डिले किया है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी डिले ऑफ पेमेंट पे ही आती है और किसी चीज पे नहीं आती। ठीक है भैया जी। राहुल जी आस्क योर क्वेश्चन। राहुल जी, सुनील मंगला जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार मित्तल साहब। नमस्कार मंगला जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया रिगार्डिंग ट्रांजिशनल ट्रांस 1 के लिए, यस, इसमें सर क्या ओपिनियन है आपकी सर? इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने जजमेंट को पढ़ा नहीं, शायद कल ही आया है। कुछ हाँ जी सर आए हैं, उन्होंने 3 साल के लिए पीरियड कर दिया है। हाँ जी। अच्छा डिसीजन है कि 3 साल का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है कि आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं की। लेकिन इसके ऊपर मेरा कुछ और भी मत है, अगर समय होगा तो मैं वो आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जो उस जजमेंट में भी कवर नहीं किया होगा कि आपको स्क्रीनशॉट देना है नहीं देना है। आपको पता होगा कि जब भी आप एक्सटेंशन के लिए जाते थे, दिल्ली हाईकोर्ट में पहले भी डिसीजन किया कि आप मैनुअली फाइल कर दो, लेकिन वो कहते थे आपके पास आपने अटेम्प्ट किया, स्क्रीनशॉट है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से बिना स्क्रीनशॉट के आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिल रहा है, आप उसको एंजॉय करें। अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत डालता है तो आपको भी हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा जजमेंट है, 3 साल के लिए उन्होंने क्या किया। जबकि मेरे को ऐसा लगता है ये जजमेंट में तो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई थी जिसमें मार्च 2020 तक की डेट दे दी थी, वो शायद कंसीडर ना की। ठीक है सर। क्योंकि ऑलरेडी मार्च 2020 तक की तो डेट सरकार नहीं करती थी। हाँ जी 2020 की कर दी। ठीक है सर। राहुल जी आस्क योर क्वेश्चन। राहुल जी मिस्टर राज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। राज जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो। यस। हाँ सर, मैं ये पूछना था बेसिकली मेरी इंडियन होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, लेकिन मेरी जो फॉरेन सब्सिडी कंपनी है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होता है वो उसका जो इंडियन होल्डिंग कंपनी है उसके अगेंस्ट में बिल रेज होता है, और मैं अपने सब्सिडी कंपनी जो फॉरेन है उससे वो रीइंबर्समेंट करवा लेता हूँ। लेकिन जो इनवॉइस जो आता है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो होल्डिंग कंपनी यूटिलाइज कर लेती है, इवन इफ दैट सर्विसेज हैज बीन यूज्ड बाय फॉरेन सब्सिडी। सो कैन आई अवेल द जीएसटी फॉर द सेम? मेरे को जो समझ आया, ये कहना चाहते हैं कि सपोज there is a tax amount of 100 rupees that against that services was used by many companies, and आप एक ही अकाउंट में सारा का सारा क्रेडिट लेना चाहते हो। मेरे को लगता है उसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, उसमें लॉ परमिट नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मैं क्रेडिट कर रहा हूँ जबकि उसका यूटिलाइजेशन जो उस सर्विस का है वो दूसरी जगह हो रहा है, गलत होगा। मेरे हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रेडिट है वो वाला रूल बनाना चाहिए, और उतनी क्रेडिट जितना आपने उसके अगेंस्ट एक्सपेंस अपनी अकाउंट में बुक किया उतनी परसेंटेज क्रेडिट आपको यूज करना है। ओके सर, वन मोर क्वेरी रिलेटेड टू दिस सर। अगर मैंने अपना कोई गोडाउन या रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन मुझे सामने से रेंट वगैरह रिसीव नहीं हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर है, सो कैन आई नीड टू पे जीएसटी फॉर द रेंट व्हिच आई हैवंट रिसीव्ड फॉर द सेम?
जीएसटी तो आपको देखो पे ही करना पड़ेगा, या तो आप उसके साथ एग्रीमेंट करें कि रेंट रिड्यूस कर दिया है, कोई आपको पे नहीं करता है उसकी वजह से जीएसटी माफ नहीं होता। फोर्स मेजर जो क्लास है वो जो गवर्नमेंट की पेमेंट है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्स मेजर जो क्लास है ये आपस में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, तो आप फोर्स मेजर क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन आप देखेंगे उसमें फोर्स मेजर क्लॉज को भी मैंने डिस्कस किया है, कुछ आप उसको देख लें, फिर भी क्वेरी हो तो आप मेरे को मेल करेंगे। कैलाश जी आस्क योर क्वेश्चन। केसी गुप्ता जी। हाँ सर, एक सर एनुअल रिटर्न फाइल करते समय मेरी IGST रह गई। हेलो। हाँ यस सर 17-18 की एनुअल रिटर्न फाइल करते समय मेरी IGST रह गई 17। क्या मैं उसको अगले साल में 18-19 में वो कर सकता हूँ क्लेम, जबकि मैंने फॉर्म GSTR 3B में मैंने उसको लिया है। मेरे हिसाब से आप एक काम करें, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको आगे ले जाने की ऐसे पावर है। आप 3B में ले रहे हैं, फिर आप कह भी रहे हैं कि रह गई, तो कहाँ पे रह गई आपकी? एनुअल रिटर्न में सर, एनुअल रिटर्न में स्किप करने से रह गए। हाँ क्यों नहीं करते? एनुअल रिटर्न के अंदर अब करेक्शन की अगर पावर नहीं है तो आप एक फाइल करके उसमें करेक्शन करवा लें, हाई कोर्ट में चले जाएं गलती से, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन एरर है और ह्यूमन कोई बहुत। हाँ तो आप तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हाँ लॉ में, क्योंकि क्या है कि जीएसटी पोर्टल आपको परमिशन देगा नहीं, क्योंकि अगर आपको जीएसटी पोर्टल में ही अगर ऐसा हो जाता तो आप ये क्वेरी रेज नहीं करते। मेरे को ये लग रहा है कि आप जो आपका क्रेडिट रह गया है IGST का, आप उसको जीएसटी पोर्टल पे करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें कि छोटी सी 1 या 2 हियरिंग में आपका फैसला आ जाएगा कि इनको ये करेक्ट करने की पावर मतलब करेक्ट की जाए, क्योंकि आपने तो इतनी जेन्युइन आपने 3B में दिखाई रखी है ऑलरेडी। बाई चांस एनुअल रिटर्न में रह गई है तो वो हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे देगी कि इसको करेक्ट करें, ताकि आपको, क्योंकि आप अगले साल करेंगे तो आपको और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है नहीं। अतुल जी आस्क योर क्वेश्चन। अतुल जी। हाँ जी अतुल्या जी बोलिए सर। कैन यू हियर मी? यस। हाँ जी मित्तल साहब, जब हमने अभी ऑडिट किया है तो भी प्रॉब्लम क्या आई है, कई लोगों ने IGST कर दिया है या उल्टा कर दिया है, तो उसको हम एनुअल रिटर्न्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं? नहीं, इसकी देखो प्रोसीजर की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अभी शायद एक सर्कुलर कुछ आया था कि अगर आपने दूसरे हेड में पे कर दिया तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा, लेकिन प्रोसीजर के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोसीजर के हमारी पूरी फर्म को काम ही नहीं करती है, तो हम देख नहीं पाते ना हमें। दीप जैन जी आस्क योर क्वेश्चन। दीप जैन जी। हाँ मित्तल जी। यस बताएं सर। मित्तल जी मेरे जो क्वेश्चन है वो ITC से रिलेटेड है। यस। जो ITC हम रिवर्स चार्ज में पे करते हैं, यस, मान लीजिए 2018-19 का कोई ऐसा रिवर्स चार्ज का ITC है जो क्लाइंट से रिवर्स चार्ज काटने से रह गया, लेकिन जब हमने ऑडिट की तो मई 2020 में वो इंडिकेट हुआ और मई 2020 में पे हुआ। तो क्या उस ITC का क्रेडिट हम ले सकते हैं? अगर हम नॉर्मल उसमें जाएं, जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड तो हमारा निकल चुका। यस। तो उस ITC को क्या हम क्लेम कर सकते हैं? देखिए रिवर्स चार्ज के अंदर जो टाइम, मेरे हिसाब से वो टाइम पीरियड है कि जब आप उसको पे करते हैं तब आपको लेना है। जिस मंथ में पे रिवर्स चार्ज का पे नहीं किया, जो 1 साल का आप टाइम पीरियड बता रहे हैं कि बिल के इनवॉइस से, वो आप कह रहे होंगे कि निकल गया है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिटर्न और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर वाला जो पीरियड है उसमें नहीं ले पाए क्योंकि हमने जमा ही नहीं कराया था। हाँ, जो सितंबर का पीरियड था वो निकल के आप ये कह रहे हैं जी। आप अगर आपका स्टेक हाई है तो आपको क्रेडिट श्योरली मिलेगा, आपको आगे को नॉर्मल प्रोसीजर में अब क्या प्रॉब्लम आ गई है कि जीएसटी पोर्टल जो है वो अलाउ ही नहीं करता। जीएसटी पोर्टल के ऐसे चेक बैलेंस लग रखे वो आपको परमिट नहीं करेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा एक सवाल था, जो जीएसटी हम पे करते हैं जब भी हमारे गुड्स इंटरसेप्ट होते हैं कहीं, हेलो, तो उस टाइम हमारे को एक पेनल्टी पे करते हैं और एक जीएसटी पे करते हैं। यस। मान लीजिए वो जो मेरे गुड्स इंटरसेप्ट हुए वो हुए
थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से मेरा ई वे बिल ठीक नहीं बना, मेरा व्हीकल का नंबर गलत पड़ गया, मेरा HSN कोड गलत हो गया। यस यस। क्या जो ये मैं GST पे करूंगा मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप अगर आपके ऊपर फ्रॉड का केस बनाएंगे तो नहीं ले सकते। क्लैरिकल एरर है तो अलग चीज है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो इनपुट सर्विस है जी। ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ये आउटपुट टैक्स का कलेक्ट करते हैं। दो राय दूंगा मैं आपको यहाँ, आपकी जो क्वेरी है ये इनपुट टैक्स नहीं है, आपके लिए आउटपुट है, तो क्रेडिट लेने की तो बात ही नहीं आएगी। दूसरी क्वेरी का आंसर दूंगा, जो ये मेरा ये मानना है जो ये आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम 129 और सेक्शन 130 जो है यस एग्जैक्टली ये एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि टैक्स दो बार कलेक्ट नहीं होता है। टैक्स कलेक्ट करने की प्रक्रिया अलग है, जो 73 और 74 में नोटिस देना पड़ेगा उसको, और टैक्स वो फुल अमाउंट का, वो तो ऑन द स्पॉट कहता है, ट्रक को रोक के खड़ा हो जाता है कि मेरे को इतना रुपए का टैक्स जमा कराओ। पेनल्टी एक अलग प्रोविजन है, टैक्स एक अलग चीज है। उस गुड्स तो टैक्स वैसे भी देना है आपको, उस गुड्स मतलब तो ट्रक दे देता है। इस केस में मैं 2 बार टैक्स देता हूँ। एक बार मैंने नॉर्मल रूटीन में अपने गुड्स पे टैक्स दिया, और दूसरा जो वो मेरे गुड्स रोक के खड़ा हो गया उस टाइम जो उसने मेरे को नोटिस काटा, मैंने नोटिस और पेनल्टी दोनों जमा कराई। मेरा सवाल ये है जो ये मेरे कैश लेजर में जी मैं ये कहूँ कि 2 बार टैक्स कोई कलेक्ट नहीं, आपको दोबारा टैक्स देने की बजाय उस टैक्स अमाउंट को चैलेंज करना चाहिए, और अगर आपने टैक्स पे कर दिया है तो आप उसका रिफंड क्लेम करें, आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ इनपुट सर्विस का आता है, ओके इनपुट सर्विस नहीं है। ओके ओके यस अतुल जी आस्क योर क्वेश्चन। अतुल जी। मित्तल साहब नमस्कार। नमस्कार। मित्तल साहब, एक कंपनी है जो कि ट्रांस 1 फाइल नहीं कर पाई, टेक्निकल रीजन कुछ हो गया, लास्ट में जब रिटर्न ट्रांस 1 फाइल करनी थी तो कुछ नहीं कर पाई, तो अब कुछ कर सकती है क्या जी वो? यस, अब तो दिल्ली हाई कोर्ट का कल ही जजमेंट आया कि जो डेट है वो 3 साल का पीरियड बता दिया उन्होंने, तो 30 जून तक आपके पास पीरियड है, आप ट्रांस 1 फाइल करें। लेकिन फिर वही दिक्कत आएगी, जजमेंट आने के बाद भी पोर्टल तो खुलता नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपका जजमेंट है, वो पोर्टल खुलता नहीं है, फिर वो फिर डायरेक्शन है पोर्टल खोलो। तो आपको आवाज में इंटरप्शन तो नहीं आ गया, आपको जो है क्रेडिट जरूर मिल जाएगा ट्रांस 1 का, अब तो जजमेंट भी आ गया है। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ने खुद 31 मार्च तक डेट बढ़ा दी थी, और 31 मार्च आप जी सर, थैंक यू सर। राघव जी आस्क योर क्वेश्चन। राघव जी। हाँ जी सर, नमस्कार मित्तल साहब। नमस्कार राघव जी। हाँ जी सर, ऐसा है मेरे क्लाइंट की हेलो राघव जी आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। बोलो सर। मित्तल सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा एक क्लाइंट है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन स्टेट में है, लेकिन उसको सेंट्रल से सेक्शन 70 के अंदर समन आए हैं सुपरिटेंडेंट के कि आपके ईवे बिल में और सेल्स GSTR 1 में और 3B में डिफरेंसेस हैं, काइंडली गिव अस द रिकंसिलेशन। सो पहला क्वेश्चन ये है, वेदर दिस नोटिस इज वैलिड बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन स्टेट की है, क्या सेंटर मुझे इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी चीज में सेक्शन 70 में नोटिस दे सकता है? और थर्ड, एम आई बाउंड टू गिव ऑल दिस काइंड ऑफ रिप्लाई और नॉट? देखिए, पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। कोई भी आपके पास नोटिस आएगा, रिप्लाई तो दोगे ही, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसके ऊपर डिन ना हो। अगर डिन नहीं है तो वो कहते हैं नॉन एस्ट माना जाएगा। दूसरा, मेरा भी ये मानना है कि जब स्टेट का जुडिक्शन आता है तो सेंटर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। थर्ड, मैं अपने ओन ही आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि जो आपको ये कह रहा है कि आप रिकंसिलेशन बना के लाओ, ये लाओ, मेरा जो जजमेंट मैंने अभी जो ई बीज का आपको दिखाया था, आप उसकी साइटेशन नोट करके पढ़ना। मेरा ये मानना है किसी भी कानून में ऑफिसर के आप चपरासी और ऑफिसर्स के नौकर नहीं है कि वो मन में आए वो बनवाएं। हमने उस जजमेंट में ये प्रूव किया कि वो हमें डायरेक्शन नहीं दे सकता रिकंसिलिएशन बनाए। सेक्शन 70 आप गहराई से पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक ही पावर है, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है या एविडेंस के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए बुला सकता है। और डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट बनाने की बात करे वो डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा रहा है। तो सेक्शन 70 के प्रीव्यू से बाहर है, वो आपको ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। रिकंसिलिएशन बनवाने के लिए वो आपको कभी भी नहीं कह सकता है। अभी तक मैंने कोई ऐसा कानून पढ़ा ही नहीं जिसमें रिकंसिलिएशन
बनवाने सर, के मेरे- लिए कोई ऑफिसर हमें डायरेक्शन दे सकता है। सर मेरे नोटिस में उसने क्लियरली मेंशन किया है कॉपी ऑफ सेल इनवॉइस अलोंग विद सेल लेजर, कॉपी ऑफ परचेज इनवॉइस अलोंग विद परचेज लेजर, बैंक स्टेटमेंट, मंथ वाइज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी 3B1 एंड ईवे बिल डेटा क्लैरिफाइंग द डिफरेंस इफ एनी। देखिए ये ऐसा करके उसने नोटिस दिया प्रॉपर सर, ये और उस पे दिन भी नहीं है सर, दिन नंबर भी नहीं है उस पे। राघव जी, नल एंड वॉइड है, रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये बताऊंगा, आपने क्वेश्चन रिकंसिलिएशन का पूछा था, बिल्कुल क्लियर कटर रिकंसिलिएशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। जहां तक डॉक्यूमेंट मांगने की बात है, सेक्शन 70 तभी लागू होता है जब पहले से कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। सेक्शन 70 इटसेल्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। ये इनको देखो, मैं सब ऑफिसर्स को बुरा लगता है मेरी बातों का, इनके खून मुंह लगा हुआ है, ये बहुत करप्ट हो चुके हैं, ये सबको नोटिस ऐसे भेजते रहते हैं। ये पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, ये सेक्शन, मैंने कलकत्ता में एक केस किया और मैंने यही कहा कि उनकी फ्लाइट निकल गई तो मेरे क्लाइंट की आंखें बैठ गई और सम्मन दे दिया। मैंने कहा मैं उनका जिम्मेवार नहीं हूँ, उनकी फ्लाइट निकल गई तो होटल में रुकते, मेरे क्लाइंट किया नहीं। और उसमें ये लिख दिया कि आप चेन्नई 3 बजे हाजिर हो। मैंने कहा रात को 1 बजे नोटिस देते हैं और 3 बजे उनके पास हाजिर हो, कोई हो सकता है? तो जज ने हमें रिलीफ भी दिया और वो सारा का सारा केस पिछले 5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ। तो ऑफिसर्स के साथ लड़ना पड़ता है। आपकी जो क्वेरी है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह लीगल, हम तो रोज ही ऐसे क्वेश्चनों को फेस करते हैं, तो आप उसको बड़े प्यार से, पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि वो रिकंसिलिएशन नहीं मांग सकता। दूसरा, सम्मन अलग चीज होती है, इंक्वायरी अलग चीज होती है। इंक्वायरी इस सेक्शन में, सेक्शन 70 में नहीं कर सकता। पहले इंक्वायरी के प्रोविजन अलग है, उसका नोटिस अलग आएगा, उसमें बात, और उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, वो आपको लिख के देगा। आप उससे मांगो क्या डिफरेंस है, उसको क्या पता चला? वो तो हर एक को ऐसी चिट्ठी भेज रहा है पैसे कमाने के लिए। तो आपको रिप्लाई देना, तो आप ये कहो कि ये सेक्शन 70 अप्लीकेबल नहीं होता, आप से कोई रिकंसिलिएशन नहीं मांग सकते, सेक्शन 70 में कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। संजय जी, आस्क योर क्वेश्चन। संजय जी। सर नमस्कार, मेरे को ये पूछना था कि एक बिल्डर कंस्ट्रक्ट कर रहा है 100 कमर्शियल यूनिट्स और वो 100% इनपुट क्लेम कर रहा है। अब एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ही इज एबल टू सेल ओनली 30% ऑफ द यूनिट, 30 यूनिट्स यू कैन से। तो वो क्या उसको बाकी का रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट? देखिए, मेरा अपनी लीगल ओपिनियन है, नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेरी बहुत अच्छी, क्योंकि पहले भी ऐसे केस होते रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं आपको फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए, कि पहले एक्साइज के अंदर जब क्रेडिट लेते थे उस टाइम एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मान लो मेरे आउटपुट पे। जब मैंने क्रेडिट ले लिया, मेरा आउटपुट एग्जेम्प्ट कर दिया, तो क्या मेरे को वो वापस करना है? तो हमें ये देखना है जिस दिन हमने क्रेडिट लिया उस दिन हम इंटाइटल थे क्या नहीं थे। हमें ये नहीं देखना कि बाद में मेरी सेल हुई, यूनिट हुई क्या नहीं हुई, वो कैसे पता चलेगा? अब आपकी मान लो यूनिट ऐसी थी, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है 1-2 साल में पूरा हो गया हो। सपोज प्रोजेक्ट 20 साल चलना है, तो आप क्या वेट ही थोड़ी करते रहेंगे? आपको तो क्रेडिट लेना है, यूज करना है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि वापस करने का। नीरज जी, आस्क योर क्वेश्चन। नीरज जी। Yes, sir. Good evening, sir. Sir, can we take a credit? Can we issue a credit note of financial year 18-19, which is not issued until 30th of September 2019, or till as on today? देखिए, मैं प्रोसीजर डील नहीं करता, लेकिन ये टाइम लिमिट मेरे को बताई गई है वो है, और वो टाइम लिमिट पुराने वाली तो एक्सटेंड की नहीं, अभी वाली तो एक्सटेंड कर दी है कोविड की वजह से। आपको ऐसे जेन्युइन केसों में डिफिकल्टी आती है तो आपके पास एक ही पावर होती है, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां पे रीजन आपको सॉलिड होगा तो बताना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट शायद ये टाइम फ्रेम इसलिए पुट कर रही है कि लोगों को इतना टाइम मिलने के बाद भी वो एडजस्टमेंट की एंट्री में तो अगर नहीं लगे, अगर आपका जेन्युइन केस है आप कोर्ट जाएंगे तो शायद आपको 99% रिलीफ मिल जाएगा। राजीव जी, आस्क योर क्वेश्चन। राजीव शर्मा जी। हाँ जी सर, प्रणाम जी। एक प्रश्न सर मेरा ये है, आपसे ज्यादा चाहता हूँ कि सर सेक्शन 17 में हमें फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग की सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड दैट आईटीसी शैल बी अवेलेबल where it is obligatory for the employer to provide the same to the employees. सर, अब हमारे यहाँ पंजाब में जब ये यूनिट्स को ओपन करने की परमिशन मिली है, उसमें ये कंडीशन है कि आप उनके खाने की भी व्यवस्था करेंगे, उनके हेल्थ चेकअप की भी व्यवस्था करेंगे। तो जीएसटी लॉ में ऐसा लिखा है कि आउटडोर कैटरिंग की आप सेवाएं लेंगे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विस
एम्प्लॉयज के लिए लेंगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि मुझे एक लॉ के अंडर ऑब्लिगेटरी है, अगर मैंने वो व्यापार चलाना है कि ये सेवाएं मैं अपने एम्प्लॉयज को दूं, तो मुझे ये क्रेडिट मिलेगा सर आईटी से? मेरे हिसाब से तो मिलेगा ना, आप खुद ही कह रहे हैं लॉ में प्रोविजो लिखा हुआ है, व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय, तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने नॉर्मल केस में क्रेडिट अलाउ नहीं किया, लेकिन जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर लिखा रहता है कि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवानी है, तो उन्होंने उसके फैसिलिटीज दी है, तो जो प्रोविजो आपने पढ़ा उसी प्रोविजो के तहत आपको मिलेगा। आपको डाउट क्यों लग रहा है? आपके दिमाग में डाउट क्यों आया जब आपको खुद को इसकी जानकारी है कि प्रोविजन में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड, तो फिर क्यों डाउट लग रहा है? मेरा संशय सर इस तरफ से था, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में तो नॉर्मली नोटिफिकेशंस इशू हो जाते हैं, जैसे कि आप एम्प्लॉय को घर छोड़ के आएंगे। ये जो हमें रिक्वायरमेंट है, ये जैसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अंडर है, धारा 144 के अंडर जो उन्होंने फैक्ट्रीज की परमिशन दी है, उसमें ये लिखा है सर, तो भी ये लॉ के अंडर हुआ ना? मैंडेटरी है आपके लिए, उसमें ये जी मैंडेटरी तो है, फैक्ट्री एक्ट का ठीक ठीक जी। आपको जब आप हैं यस राहुल जी आस्क योर क्वेश्चन। राहुल जी आस्क योर क्वेश्चन। विजेंद्र बंसल जी आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टैक्स टाइमली जमा हो गया जीएसटी का, रिटर्न ओनली 7 days लेट है, उसके बावजूद भी वो डिपार्टमेंट टैक्स जो इंटरेस्ट जो है वो ग्रॉस अमाउंट में मांग रहा है। वही तो मैंने आंसर दिया है कि अगर आपको ग्रॉस अमाउंट पे नहीं मांग सकता, वो ग्रॉस अमाउंट पे जो भी मांग, आपने पूरी डिस्कशन आज सुनी हो, तो मैंने इसी पे काफी फोकस किया कि वो अगर ग्रॉस अमाउंट पे मांग रहा है वो गलत है, ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मांग सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है वो इस प्रेजेंटेशन पे, और अगर आपको फिर भी परेशानी हो रही है आपको कोर्ट जाना ही जाना पड़ेगा। भट्टाचार्य जी आस्क योर क्वेश्चन। भट्टाचार्य जी एच के वासने जी। Okay, this is Proshun Bhattacharya. Ask your question, please. Yes. Yeah, I just wanted to ask. You just answered a question that the holding company received the software, and he allowed the subsidiary to use it under a payment, against a payment. So the question was whether the holding company can use the full ITC. You said maybe not. So my question is, under a right to use policy, he can allow the subsidiary to use and take some payment against it. And why won't the holding company avail the full ITC? Then you do one thing. Once you take the full credit, and once subsidiary company use it to raise a bill to them, and you charge the tax from them. Yes, that's what I'm doing. Then you can do it. There will be a cross billing. That is yes, what I understand. Now, so, and I hope you're keeping well, and thank you wonderfully for a wonderful deliberation. You just doing it. Thank you so much. Vaashne ji, ask your question. मित्तल साहब नमस्कार। मित्तल साहब, ट्रांजिशनल फॉर्म जो आया था, स्टार्ट हुआ था, वो समवेयर इन अगस्त एंड सितंबर में स्टार्ट हुआ था, और हमारा जीएसटी एक्ट आया था 1 जुलाई 2017 से। हमने जो ट्रांजिशन पीरियड का जो क्रेडिट था सर्विस टैक्स का, वो 1 जुलाई से हमने अपनी 3B में ले लिया था। उसके हमको नोटिस आया है कि दैट क्रेडिट विल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑन द पोर्टल ऑफ द स्कोप। नो ट्रांजिशनल क्रेडिट तो आपको 30 जून 2016 तक का ही है। वो लेना कब है? जब पोर्टल खुल गया, फॉर्म बन गया, तब लेना है। आपने क्रेडिट तो 30 जून 2017 तक का ही लिया है ना। 30 जून 2017 के बाद का क्रेडिट कैसे आ जाएगा? इस डेट से हमने लेना है रिटर्न के अंदर 3B में। नहीं, लॉ ये है ट्रांजिशनल क्रेडिट का, जो आपको क्रेडिट 30 जून 2017 तक आपकी बुक्स में आ रहा था, जिसकी आपने रिटर्न पूरी भरी है 30 जून 2017 को, जैसे सर्विस टैक्स की या एक्साइज ड्यूटी की, उसका क्रेडिट आपको जीएसटी में ले जाना है। मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है आपके केस में ऐसा रहा हो कि लेट्स से 1000 रुपए का क्रेडिट तो 30 जून को था सर्विस टैक्स का,
और 50 रुपए का क्रेडिट आपको बाद में हुआ क्योंकि कुछ टैक्स आपने बाद में पे किया हुआ, रिवर्स चार्ज एक्सेट्रा का, तो क्या उसका क्रेडिट ले सकते हैं? मेरा आंसर होगा यस, ले सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये नहीं था, हमने जो उसका क्रेडिट लिया है वो सो मोटो 1 जुलाई का, जो जुलाई का रिटर्न था टीवी, उसमें हमने ले लिया है। ट्रांजिशनल फॉर्म हमने फाइल किया टाइमली अगस्त में जाके, तो उन्होंने रेज किया है दैट आपका एंटाइटलमेंट जो आईटीसी का होगा वो होगा आपका डेट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द फॉर्म ऑन द पोर्टल ऑफ ट्रांजिशनल वन फॉर्म। नहीं, पहले आप एक चीज को क्लियर कर दें, एक ट्रांजिशनल क्रेडिट अलग बात है और इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग बात है। आप ट्रांजिशनल क्रेडिट की बात कर रहे हैं या इनपुट टैक्स क्रेडिट की, या दोनों की बात कर रहे हैं? ट्रांजिशनल इसकी सर्विस टैक्स के क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, जो मेरा 30 जून की मेरी सर्विस टैक्स की रिटर्न में मेरा खड़ा हुआ है। हाँ, तो उसका क्रेडिट आपने ठीक लिया है, फिर उसमें क्या वो दिक्कत आपको कर रहा है? मैंने उसको जुलाई की रिटर्न में ले लिया है ना क्रेडिट, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको क्रेडिट ले लिया, उसको कैरी ओवर करके। चाहे उनका प्रोसीजरल डिले था ना, फॉर्म उनका नहीं आया था, उनके पार्ट में डिले था। नहीं, जुलाई में जो रिटर्न फाइल की वो तो जीएसटी की रिटर्न फाइल की होगी ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल, वो जीएसटी की रिटर्न थी, पर मेरा एंटाइटलमेंट ऑफ टैक्स तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है आपका, आपने बिल्कुल ठीक लिया क्रेडिट। मतलब अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो आप ये समझो कि आपको क्रेडिट मिलना था। अब यहाँ तो देखो, हम उस देश में रह रहे हैं जब 100 में से 90 केस में वो झूठे ही चिट्ठियां देके बुलाते रहते हैं। अगर आपने ठीक किया है तो सांच को आंच नहीं, तो आपको वो परेशान करने के लिए बुला रहा है। मेरा ये मानना है कि बस अननेसेसरी के लिए आपने, मेरे हिसाब से जो फैक्ट आपने बताया, जो मेरे को समझ आया, आपने बिल्कुल ठीक क्रेडिट लिया है। वो जो बात कर रहा है मेरे हिसाब से वो पहली बात तो वर्बली बात कर रहा होगा, आपको नोटिस राइटिंग में दिया भी नहीं होगा। अगर आपको कोई नोटिस दिया है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, मैं जवाब आपको बता दूंगा क्या देना है। जगदीश अजमानी जी, आज के क्वेश्चन। जगदीश जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरे 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन है। एक तो क्रेडिट नोट मिला सप्लायर से विदाउट जीएसटी वाला, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या इनपुट रिवर्स करना चाहिए? नहीं, जब आपको क्रेडिट उसने दे दिया विदाउट जीएसटी, उन्होंने उसमें जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं दिया, इंसेंटिव मतलब है। उस केस में मेरे को जैसे 100 रुपीज या 10 रुपीज का उन्होंने क्रेडिट नोट दे दिया, लेकिन दे हैव नॉट रिवर्स द आउटपुट जीएसटी। आपको क्रेडिट दिया क्यों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उन्होंने सेल इंसेंटिव दे दिया ना बाद में, जैसे कि उन्होंने उसमें क्रेडिट नोट में जीएसटी को रिवर्स नहीं किया आउटपुट वाले और सप्लायर ने। वो ये कहना, आप ये कहना चाहते हो कि एक किस्म से डिस्काउंट बाद में दे दिया? हाँ जी सर। आप, मेरे हिसाब से आपको कोई जीएसटी रिवर्स नहीं करना है ऐसे केस में जब उसने नहीं दिया क्रेडिट, क्योंकि इसका मतलब उसने आपसे कलेक्ट करके पूरा जमा करा दिया। आप रिवर्स तभी करेंगे जब आपको क्रेडिट देगा। जी, तो यानी कि इस केस में मेरे पास 10 रुपीज का इनपुट बच जाएगा, बिकॉज मेरे को 100 पे परचेज मिला, बाद में 10 रुपीज का क्रेडिट मिल गया। आई हैव सोल्ड 95 रुपीज, तो इनफैक्ट 5 रुपीज का मेरे पास इनपुट का क्रेडिट बच जाएगा मेरे पास। बचेगा, वो तो बिजनेस की रोलिंग में चलता रहता है, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे होता है। लेकिन आप अपने सप्लायर से एक बात जरूर लिखवा लें कि उसने उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया वो पूरे पे जमा कराया है। कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऑफिसर ये मान के चलेगा कि आपका जो पैसा वापस आया 10 रुपए, उसमें वो टैक्स भी उसमें इंक्लूड था, वो आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा सकता है। डीके गांधी साहब, आज योर क्वेश्चन। सेकेंडली सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, हेलो, हाँ यस, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस पड़ा है सर, उसको यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे तो हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? नॉर्मल जैसे को कहते हैं कि आपने कैश का अमाउंट लिया, एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि रिटर्न फाइल ही की। नहीं, उसमें ऊपर मैंने पूरी डिस्कशन में इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अगर आपसे कोई इंटरेस्ट मांग रहा है तो आपको लिटिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पॉकेट से वो पैसा चला गया। हमारा ये मानना है वो सरकार की पॉकेट में चला गया। वो जो आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा आप ही के पास है, वो गलत है। वो थ्योरी मैंने जितना एनालाइज किया जीएसटी लोगों में, एक्चुअल में ऐसे केस कर रहा हूँ, वो उनके आर्गुमेंट ठीक नहीं है डिपार्टमेंट। गांधी साहब, आज योर क्वेश्चन। डीके गांधी जी। किशन कुमार अग्रवाल जी। किशन अग्रवाल जी। किशन अग्रवाल जी। मनीष सर, कोई नहीं है। मनीष जी। नक्श अरोरा। आर के शारदा जी। सर मनीष बोल रहा हूँ सर। बोलो जी, बोलो। हाँ जी सर, मेरा सवाल है आईएसडी से रिलेटेड। मेरा जो क्लाइंट है, ही हैज द ऑफिस इन दिल्ली एंड मुंबई, और वहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, और ही हैज टेकन आईएसडी रजिस्ट्रेशन इन बेंगलोर।
तो बेंगलोर में जो क्रेडिट है तो उसका इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे सर? देखिए वो डिस्ट्रीब्यूशन का तो फॉर्मूले वगैरह उसी में दिए हुए हैं, उसमें तो जानकारी नहीं दे पाऊंगा, वो तो एक कैलकुलेशन की बात है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। संदीप शुक्ला जी, संदीप शुक्ला जी, हेलो संदीप शुक्ला जी, हेलो, हाँ बोलो भैया। हेलो सर, यस, मेरे पास एक इंटरेस्ट की डिमांड आई थी, मेरा लेट पेमेंट था। सेक्शन 79 में उसने नोटिस दिया था, फिर हम उनसे ऑफिसर से बात करने गए थे तो कि इसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाए। तो ऑफिसर जो सेक्शन 79 में लिखा हुआ है कि ऑफिसर्स को पावर है कि वो इंस्टॉलमेंट कर सकता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो ऑफिसर ने खुद अपना पावर यूज नहीं किया, उसने हमसे एप्लीकेशन लिखवा दी कमिश्नर के को, और सेक्शन 80 में कमिश्नर ने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी। अभी क्या हुआ कि ये हमने एक इंस्टॉलमेंट पे करी है, फिर कोविड के कारण हम फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए। अभी क्या हम मतलब वो एक साथ जो भी पेमेंट है वो क्या एक हो जाएगी या कमिश्नर को और पावर है उसमें इंस्टॉलमेंट? मैं बोलूंगा तो जवाब जाएगा। नहीं देखो, कमिश्नर को शायद एक ही बार पावर है, मेरे पास अभी एक्ट नहीं है हाथ में, आपने जरूर पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब आती है, क्योंकि उसमें शायद एक जगह पुराने लॉ में तो होता था शायद चीफ कमिश्नर को पावर थी थोड़ी ओवर एक्सटेंड करने की। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है तो आप कोर्ट में जाके उसको बढ़वा सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम कि एक बार उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना भी दी, अब कोविड की वजह से और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उसको पावर नहीं है, तो कोर्ट को तो हमेशा ही पावर रहती है, आप कोर्ट में जाके एक्सटेंड करवा लेंगे तो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। शशिकांत जी, आज के क्वेश्चन शशिकांत जी या सुधीर चुग जी? शशिकांत जी, सुधीर चुग जी। अच्छा, दीप जैन जी दोबारा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। दीप जैन जी, आज योर क्वेश्चन। मित्तल जी, यस, हेलो। अभी जब आपने स्टार्ट किया था तो बात की थी फॉल्स इनवॉइसेस की। यस, मेरा ये पूछना है कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रूव कर रहे हैं कि सप्लाई हुई नहीं है, केवल इनवॉइस आई है, दोनों की किताबों में एंटर्ड है, सप्लायर की किताबों में भी, रिसिपिएंट की किताबों में भी, ठीक है, और उस केस में वो सर्कुलर ट्रेडिंग है, ए ने बी को काटी, बी ने सी को काटी, सी ने डी को काटी, ठीक है। तो अब एक सवाल तो ये आया कि ये क्या फेक इनवॉइस की डेफिनेशन में फॉल करेगी या नहीं करेगी। दूसरा सवाल, जो ए ने इनवॉइस काटी बी को, बी ने काटी सी को, सी ने काटी डी को, तो इन बी, सी और डी ये कड़ियां हैं जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, ठीक है। तो इनके आईटीसी का क्या होगा? मैंने इन्हीं दोनों के आंसर दिए। मेरे हिसाब से पहली बात तो फेक इनवॉइस में नहीं आया, क्योंकि इनवॉइस तो जेन्युइन है। अब आपने जैन साहब मेरे को इनवॉइस दिया, मैंने आगे इनवॉइस दिया, फेक तो हुआ नहीं। दूसरा, आपने पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये हो रहा है कि ये सिर्फ सर्कुलर ट्रेडिंग है बिना सप्लाई के जी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, हेलो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही वो अपना केस प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस बनाते हैं वो इस चीज को। थर्ड, मेरा ये मानना है, अगर वो कहते हैं सप्लाई हुई नहीं तो फिर वो टैक्स किस बात का मांगेंगे? एक पहली प्री कंडीशन है सप्लाई को। फिर तो ए बी एलिजिबल नहीं है ना टैक्स देने के लिए इस केस में। जहां से चेन स्टार्ट हुई, अगर सप्लाई नहीं मानी तो फिर तो ए बी एलिजिबल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो लेकिन चारों से टैक्स मांगते हैं और 3 को ये कहते हैं क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, तभी तो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम किसी को है ही नहीं ना। अगर ये सर्कुलर ट्रेडिंग मान भी ले तो अगर इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है मैंने जितना टैक्स इसे लेना था उतना मैं जमा कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, कहता है मैं मेरा ए का क्रेडिट लेके आगे बैलेंस पे टैक्स जमा कराने को तैयार हूँ। हमारी प्रॉब्लम जो भी एसएससी आया है वो ये कहता है, प्रॉब्लम ये है कि वो ए बी सी डी चारों से पूरे बिल अमाउंट पे टैक्स मांग रहे हैं और किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे, तभी ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। अगर वो क्रेडिट दे देते, इतना जिन लोगों ने ट्रेडिंग की है, चाहे जेन्युइन है या नहीं है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैं तो जेन्युइन मान के ही चलता हूँ, क्योंकि ये प्रूव करना तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, एसएससी की ड्यूटी तो है नहीं। तो क्रेडिट तो उसको देना ही पड़ेगा। क्रेडिट भी डिनाई करेंगे, पूरे अमाउंट में मांगेंगे और ये कहेंगे सप्लाई भी नहीं है, तो जीएसटी लॉ का पूरा वायलेशन हो जाएगा। फिर तो गवर्नमेंट। अखिलेश जी, आज के क्वेश्चन। अखिलेश जी,
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अंडर सेक्शन 16(2) द कंडीशन इज दैट द गुड्स हैज बीन रिसीव्ड। तो यदि कोई मार्च इनवॉइस का बिल सर अप्रैल में रिसीव हुआ है तो इसका आईटीसी सर मार्च में मिलेगा या अप्रैल में मिलेगा? नहीं, उसमें ये लिखा है कि माल रिसीव हो गया, उसमें ये नहीं लिखा कि टाइम फ्रेम कैसे है। वैसे आप यस सर, यस सर, देना चाहिए नॉर्मली। अब आपकी सर्कल में कोई स्पेशल है, अगर आप मेरे से पूछो पिछले 10-15 साल का एक्सपीरियंस, जब तक आपको माल रिसीव नहीं हुआ आप क्रेडिट क्यों लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है, फिजिकल डिलीवरी लेटर ऑन हो सकती है। सपोज मैं 31 मार्च को एक लैपटॉप परचेज करके लाया जी, और मैंने कहा आप रख लो, इतने में लॉकडाउन शुरू हो गया। अब मेरे को उसकी एक्चुअल डिलीवरी मिलेगी 2 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा। जी तो सर, अगर ऐसी सिचुएशन में होगा तो मेरे को क्रेडिट उसी दिन मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसको फिजिकली उठा के नहीं लेके आया, लेकिन मेरे को मिल गई। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल केसेस में जब तक माल नहीं आता आप कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। सर लॉ का इंटेंशन तो ये है ना कि गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड, चाहे ये जरूरी, ये तो लॉ नहीं कह रहा है कि इन द सेम मंथ। इट इज लाइक कि मैंने कोई चेक दिया सर मार्च में और वो मेरा कोई टैक्स का चेक अप्रैल में क्लियर हुआ तो मेरे को टैक्स का क्रेडिट मार्च में मिलता है ना सर? मैं यही कह रही हूँ, आपको ले लेना चाहिए क्रेडिट। लॉ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको पहले वो आ जाए उसके बाद ही लेना है। जी सर, कानून में ऐसे प्रोविजन है कि माल नहीं आया एडवांस पे भी तो हम टैक्स देते ही हैं। अगर सर्विस के अगेंस्ट आप एडवांस लेते हो उस पर भी टैक्स देते हो, अगर हमारे पैसे डूब जाते हैं तो भी हम टैक्स देते ही हैं। एग्जैक्टली सर। यस, तो आपके साथ हो, जैसा आपने सोचा है मैं वैसे ही सोच रखता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। संजीव मुखर्जी जी। Good evening, Mr. Saab. Transfer in case of my client was filed for claiming input tax credit of custom duty, and during the extended period, that extended period goods could not be sold. Now it is to be reversed if it has not been done till now. नहीं, आपने जो क्वेरी पूछी उसमें यह कि आपने कस्टम ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हाँ उसका था सर, उसका जब भी हम जीएसटी सर जो एक्सटेंडेड आई थिंक 31 मार्च 2019 फॉर सेलिंग दैट गुड्स। नहीं, देख पहले मैं क्लियरिफाई कर दूं, मेरे को लगता है कि कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं लिया होगा। कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट तो जीएसटी लॉ में मिलेगा ही नहीं। सर कस्टम ड्यूटी का नहीं, एसएडी का मिला होगा, स्पेशल ऑक्सिलरी ड्यूटी का मिला होगा, कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलता सर। वो हाँ एडिशनल जो ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी एसएडी व्हिच इज इक्विवेलेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। यस यस सर, लेकिन वो भी जो मेरी समझ है वो भी जो मिलता था वो तो प्री जीएसटी पीरियड में मिलता था। जीएसटी में तो आईजीएसटी लगता है सर, आईजीएसटी का ही, आईजीएसटी का बिकॉज़ कस्टम ड्यूटी वाज अलाउड अंडर आईजीएसटी। हाँ वो बात अलग है, कस्टम ड्यूटी आए तो उसका that the balance remained unutilized because goods could not be sold up to extended period, वो जो 6 महीने फिर और आगे डेट बढ़ा था। So what is to be done now? Whether it is to reverse and it can be done now also. नहीं, आपको देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जब आप माल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी देनी है और उसके इंपोर्ट पे आईजीएसटी पे करना है। यस आईजीएसटी, यस सर। और अगर जब आप माल जब बेचेंगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा, उसमें पीरियड की कहां से बात आ गई कि माल 6 महीने। जून का जो स्टॉक होता था उसका टाइम लिमिट रखा था उन्होंने तो सेल इट विथिन से 6 मंथ और फिर सर थोड़ी सर मेरे ख्याल इनकी क्वेरी थोड़ी गलत है। इन्होंने जो 30 जून को एसएडी का ट्रायल 1 के अंदर बैलेंस लिया होगा ना उसकी बात कर रहे हैं। हाँ उसका स्टॉक जो अनसोल्ड रह गया बात वही तो मैं कह रहा हूँ सर। तो उसका आप क्या रिवर्स कर दें, क्या करें सर उसको? देखो मेरे को जहाँ तक क्वेरी समझ में आई है, एक बार ट्रांस 1 का क्रेडिट ले लिया, आपको रिवर्स थोड़ी करना है सर। ऐसा है ना कि उसमें जो स्टॉक था वो टाइम लिमिट था ना जी, उसको अपन 6 महीने में या फिर एक्सटेंडेड टाइम में सेल आउट करना है, वो नहीं हुआ सेल आउट, तो उसका जो आईजीएसटी का क्रेडिट है उसको रिवर्स कर। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इसकी पूरी क्वेरी का आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो टाइम पीरियड वाली बात मेरे को अभी याद नहीं है प्रोविजंस, तो जब तक प्रोविजन को मैं एग्जामिन नहीं कर लूं मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। सर लास्ट क्वेश्चन आरुष अग्रवाल जी, आस्क योर क्वेश्चन। आरुष जी। हेलो सर। यस सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक्सपोर्ट सेल थी 17-18 में और मैंने जीएसटीआर 1 में एक्सपोर्ट सेल में दिखा दी, लेकिन 3B में नॉर्मल सेल में दिखा दी, और एनुअल रिटर्न जब मैंने फाइल करी तब मैंने वहां पे सब कुछ ठीक कर दिया।
लेकिन जब मैं GSTR 1 फाइल करता हूँ आज की डेट में, तो वहां से एक मेल आती है नेगेटिव ट्रांसमिशन की। तो वो बोलते हैं कि आपका ये नेगेटिव ट्रांसमिशन है। तो नेगेटिव ट्रांसमिशन का मतलब वही है कि उन्होंने 3B में अपडेट आपका मैच नहीं कर रहा। GSTR 1 की एक्सपोर्ट सेल और 3B की सेल मैच नहीं कर रही। देखिए ये प्रॉब्लम सब इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने रेक्टिफिकेशन की कोई प्रोविजन रखे नहीं, और जो आपका GST पोर्टल है वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जेन्युइन एक्सपोर्ट सेल है, बाय चांस मिस्टेक हो गई है, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वो करेक्शन वहीं से हो पाएगी। जैसे सर GSTR 1 में हमने ठीक अपडेट की है, केवल 3B में नॉर्मल सेल में चलेगी 3-1 की जगह, बस इतना ही। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार चली गई ना वो आज नहीं तो इनको टैक्स की पावर बहुत बढ़ा दी है, वो आपको 6 साल बाद भी नोटिस दे देगा। तो फिर तो कोर्ट भी कहेगी आप अभी तक जागे क्यों नहीं। तो आपको जब ये पता चल गया है कि वो ठीक करवानी है, आपकी चैंपियन है, उनको आप कोर्ट में लिख के बता दोगे, कोर्ट में फैसला हो जाएगा, तो आपको आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि आज की 3B में हम उसको अपडेट कर दें 3-1 में टू मैच द सेम, ताकि वो मैच कर दे। तो ऐसा नहीं चल सकता? नहीं, लेकिन अगर आपको वो कहेगा पहले वाली थी, आप एक गलती के साथ दूसरी गलती कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें, एक पहले ये करें, आप डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखे हमारे से गलती हो गई है, हाउ टू करेक्ट इट, वो नहीं करेंगे तो आपके पास एक पुख्ता प्रूफ हो जाएगा कि आपने डिपार्टमेंट को पहले से बता दिया था। अगर आप अपने आप ही ऐसी गलतियां दो बार 3 बार करेंगे तो दो केस बनाएंगे। आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर का माइंडसेट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं उनको तो पता है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे ये बहुत ही इनडायरेक्ट टैक्स वाले मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट टैक्स वाले फिर भी कहते हैं शरीफ है, वो हमेशा मान जाते हैं, आपसे तालमेल बिठा लेते हैं। यहाँ तो एक डिपार्टमेंट पहले चिट्ठी देगा, फिर दूसरा चिट्ठी देगा, फिर तीसरे को फोन कर देंगे और आपको पता चलेगा क्लाइंट से 5,000 की फीस आई और 50,000 का दिमाग लग गया, फिर भी सोल्यूशन नहीं दे पाए, वो फायदा नहीं होगा। आप एक पत्राचार करें, जेन्युइनली लिख के ये हमारे से ये मिस्टेक हो गई, इसको कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड over to Rajiv Kohli ji for vote of thanks, sir. Thank you, sir, Mittal ji, for giving us such a elaborate and nice discussion, right from the fake news, fake invoices, then we started with interest payable on gross amount, less amounts, and the subtleties and the nuances of various decisions of various high courts, which are most suitable for the assessed dealers. And we have to take, and all the question and answer आपने इतनी क्लैरिटी सबको समझा दिया, सबकी क्वेरीज दूर होगी। और अभी भी ये इवॉल्विंग लॉ, अभी इतने 3 साल होने को है GST में, अभी भी सारी चीजें सेट नहीं हो पा रही, तो इवॉल्व करता जाएगा सर आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे जैसे जूरिस्प्रूडेंस आएगी उस हिसाब से चीज चलनी पड़ेगी, बिकॉज ये वन साइडेड एंड टोटली वॉर कलेक्शन बेस से हम पैसे इकट्ठा कर ले जितना मर्जी हमें मिल जाए। बस ये वाली जो सिचुएशन है गलत था, कैस्केडिंग इफेक्ट was supposed to be removed, लेकिन अब सारा काम ये कह रहे हैं कि पैसे हमारे हो रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस एंड elaborate and lovely discussion. Thank you from the core of our heart, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Mittal साहब, thank you Jagjit ji, thank you very much, thank you sir.